Good evening to all. As we know, today's era is of innovation. And when it comes to innovation, lot of time it happens that innovators are not even aware that they have created an individual asset. And today we are conducting this webinar, especially for students, because lot of time it happens that students create some intellectual asset and they are not aware whether that is an intellectual asset or whether it comes under the category of intellectual property. And a lot of times the innovators are worried and confused how to protect their intellectual property. So that a lot of times it happens that the intellectual property which has been created may be copied by others. To protect, there are patents, copyrights, and trademarks. And we have to know the procedures, how to go for patent, what are the procedures for patent, how to go for copyright, and what is the procedure of trademarks. To guide on this topic, we have with us an expert team from Mycrave. And Mycrave and Runta, we as a group, we were associated from long time. And Mycrave Consultancy is a promoter of patent, copyright, and trademark and has initiated the propagation of providing the service of filing IPR at the lowest cost in India. This webinar, which is conducted in association with Mycrave team, will help to build and develop intellectual asset for the individuals attending it. Today's speaker, we have Mr. Dhruv Brahmabhat. He is the managing director of Mycrave Consultancy. He is a BTech in electronics and telecommunication and has done diploma in intellectual property rights, has got industrial experience of 9 years. And we also have Ms. Pooja Menon. She is COO of Mycrave Consultancy. She has done BTech in information technology and also has a diploma in intellectual property rights and has got industrial experience of 8 years. We have this expert team to guide on this topic. So students, listen to them, learn, and whatever doubts you have, please put in the Q&A provided in this webinar, or at the end we will be clearing your doubts with the help of the experts. Listen carefully, enjoy this webinar, and now I will hand over this webinar to Ms. Pooja Menon. Pooja madam, please. Hello, sir. A very warm good evening to all of you. I'll be just sharing my screen so we can start with the presentation. Okay. First of all, thank you, sir, for this platform again, and such that we can share this knowledge with the students. And we sincerely appreciate that your institute is taking this step that even during this pandemic, all the students are provided with the opportunity to learn more apart from what they are taught in their academics. So, like Mycrave and Rungta College has been working for like past 4 to 5 years. हमने काफी पेटेंट्स फाइल किए हैं इंस्टीट्यूट के साथ और उनमें से काफी पेटेंट स्टूडेंट्स के साथ हैं. तो आपकी मैनेजमेंट ये अपॉर्चुनिटी आपके बैच के साथ भी शेयर करना चाहती है कि आपके जो भी आइडियाज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इनोवेशंस हैं, उनको हम पेटेंट, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क के थ्रू सिक्योर कर सके. सो आज हम आईपीआर के बारे में डिटेल में सीखेंगे. ये जो वर्ड्स है जो मैंने अभी जस्ट कहा कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एज ए इंडिविजुअल आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है. सी, आप मेरे साथ 1 घंटा ये सेशन में जुड़े रहोगे. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज सेशन में आपने सेशन तो सुन लिया, उसके बाद आपको इसका क्या बेनिफिट हुआ ये जानना जरूरी है. ठीक है. सो इन टुडेज सेशन विल बी डिस्कसिंग नॉट जस्ट आईपीआर बट द बेनिफिट यू कैन टेक फ्रॉम इट. सो लेट्स बिगिन. बेसिकली 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है. एक होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी हम सबको पता है, जैसे कि आपका घर, गाड़ी, सोना, जमीन, इन सबको फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है.
बचपन से हमें बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है कि अगर आपके पास कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसे हमेशा बहुत सेफ एंड सिक्योर रखना चाहिए। किसी को पूछ लो कि यार ये घर कैसे खरीदा, तो लोग ऐसे बोलते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसे कमाने पड़ते हैं तब ये घर आता है। सो हम पहले से ही फिजिकल प्रॉपर्टी को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। अगर मैंने आज एक घर खरीदा, सबसे पहले मैं उसे गवर्नमेंट में रजिस्टर कराऊंगी ताकि लोगों को पता चले कि वो घर मेरा है। ओनली देन विल आई स्टार्ट एंडोर्सिंग इट, राइट। अब बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आता है आपके आइडियाज, थॉट्स, पेंटिंग्स, क्रिएटिविटी, पोएट्री, जो चीजें यूजुअली हम इंटरेस्ट से करते हैं, एज अ हॉबी करते हैं, वो चीजें आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, जो आपकी इंटेलेक्ट से क्रिएट होती है, आपके माइंड से क्रिएट होती है। अब हम बात करते हैं कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ट्रीट कैसे करते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और सडनली आपको एक आइडिया आता है, ठीक है। इन केस आपको एक आइडिया आया तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? अ वेरी कॉमन मेंटालिटी, अगर मैं होती तो मैं मेरे फ्रेंड को कॉल करती या मेरे कलीग को कॉल करती जो इक्वली कंपिटेंट है वो फील्ड में, ताकि मैं उनके साथ डिस्कस कर सकूं, मुझे वो बता सके कि मेरा आइडिया कितना यूनिक है और कितना बेनिफिशियल हो सकता है। जब तक कोई मुझे दिलासा ना दे देना कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, तब तक मैं खुद पे बिलीव नहीं करती। वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस विथ रिस्पेक्ट टू आवर इंटेलेक्चुअल थिंग्स, राइट। अब इमेजिन कीजिए आपने जिनके साथ आपका आइडिया शेयर किया वो भी आपकी तरह फेम या मनी अर्न करना चाहते हैं। इमेजिन कीजिए आपने आपके फ्रेंड के साथ एक आइडिया शेयर किया एंड ही और शी डिसाइडेड कि एक काम करते हैं, मैं जाके न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देता हूँ कि मैंने एक इनोवेशन किया है, दिस इज गोइंग टू बी ह्यूज। अब उन्होंने आपका नाम तो कहीं पे लिया नहीं, खुद के नाम से पब्लिश कर दिया। ऐसे सिचुएशन में आप उन्हें कैसे रोक सकते हो? एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं। इमेजिन करो आपका एक बहुत खूबसूरत सा घर है और मैं कॉफी पीने आती हूँ और मुझे आपका घर बहुत सुंदर लगता है। मैं बोलती एक काम करो, आप अपना बैग पैक करो और घर से चलते बनो, आज से ये घर मेरा। कैन आई डू दैट? एक्चुअली नहीं। आपके पास घर के प्रॉपर्टी पेपर्स है, आप डंडा लेके मुझे घर के बाहर भगा सकते हो, ट्रू। बट अगर आपका आइडिया, आपका कोई थॉट या प्रोजेक्ट कोई कॉपी करता है तो आप उन्हें कैसे रोक सकोगे? हाँ, आप हल्ला कर सकते हो बट देयर इज नो प्रूफ, देयर इज नो एविडेंस। ऐसी चीजें आपके साथ ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसी एक सर्विस प्रोवाइड की है। उसके अंडर आप प्रोसेस को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो यूजिंग पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड डिजाइन। सो आईपीआर को 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ताकि आप आपके आइडियाज, इनोवेशंस और मेथड्स को प्रोटेक्ट कर सके। सो आज के लेक्चर में हम 1 बाय 1 ये चारों कैटेगरीज को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको इसकी ग्रुपिंग पता चले, और उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि इसे आप कैसे खुद के लाइफ में इम्प्लाई कर सकते हो और इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर सेशन के दौरान आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज आपके चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हर एक क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। हमारे साथ ध्रुव सर भी हैं इस लेक्चर में, तो ही विल आल्सो बी गाइडिंग अस थ्रू आउट द सेशन। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग इज कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपकी आर्टिस्टिक स्किल्स को प्रोटेक्ट करता है। हम में से कई लोग सिर्फ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखते, राइट। हमें पेंटिंग का, ड्राइंग का, डांस करने का, इन सब का शौक होता है। यूजुअली हमारी आर्टिस्टिक स्किल्स को लोग इंटरेस्ट या हॉबीज की तरह अलग कर देते हैं। बट हमें ये जानना जरूरी है कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आर्ट की वजह से अर्न करते हैं, राइट। देयर आर ब्यूटीफुल सिंगर्स, डांसर्स, कंपोजर्स, एक्टर्स, ये सब आप खुद की आर्ट के स्किल्स की वजह से अर्न करते हैं। तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कॉपीराइट्स। अब जब भी मैं किसी के साथ कॉपीराइट डिस्कस करती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि ये तो सोशल मीडिया का जमाना है। सपोज मैंने एक ब्लॉग लिखा या मैंने फोटोग्राफ क्लिक किया या पेंटिंग किया या एक सॉन्ग गाया है, तो मैं उसे ऑनलाइन पब्लिश कर दूंगी। मुझे कॉपीराइट लेने की जरूरत क्यों है? व्हेन आई पब्लिश, पीपल ऑलरेडी नो द वर्क इज डन बाय मी। अब डिफरेंस समझिए कॉपीराइट फाइल करने का और डेटा पब्लिश करने का।
जब भी आप कोई डेटा ऑनलाइन पब्लिश करते हैं, जो टाइम स्टैम्प आपको शो करता है वो है डेट ऑफ पब्लिकेशन, मतलब किस तारीख को the date in which the data was published, it became visible for others to view. वो टाइम स्टैम्प आपको ये प्रूव करने में हेल्प नहीं करता कि उसका डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, कौन सी डेट को वो क्रिएट हुआ है, इसका कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं देता, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट वो ये नहीं बताता कि आप ही उसके ओनर है कि नहीं। पॉसिबल है कि मुझे किसी और का डेटा अच्छा लगा तो मैंने पब्लिश कर दिया, इट डजंट प्रूव दैट द वर्क इज माइन। बट कॉपीराइट एक लीगल गवर्नमेंट टाइम स्टैम्प डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि उस वर्क पे, उस आर्टिस्टिक वर्क पे राइट आपका है और इस डेट को वो क्रिएट हुआ है। कॉपीराइट सिर्फ एक 10 मिनट्स ऑनलाइन प्रोसीजर है जिससे आप आपके राइट्स क्लेम कर सकते हो। कुछ एग्जांपल लेते हैं जिससे आप और बेटर अंडरस्टैंड करेंगे कि कॉपीराइट की वैल्यू कितनी है। अब आपको स्क्रीन पे 2 फोटोग्राफ्स विजिबल होगा, राइट। अब जब ओबामा सर प्रेसिडेंट बनने के लिए कैंपेन कर रहे थे तो किसी प्रेस मीडिया फोटोग्राफर ने उनका ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो इमेज दिख रहा है वो क्लिक किया। अब हुआ ऐसा कि आफ्टर क्लिकिंग द फोटोग्राफ he went back to his agency. उस एजेंसी में कुछ लोगों ने उस फोटोग्राफ को ब्यूटिफुली रेड एंड ब्लू कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया और उस पर कॉपीराइट्स लेके उसे पब्लिश किया। अब इलेक्शन का टाइम था तो ओबामा सर के एडवर्टाइजिंग जो भी लोग मैनेज कर रहे थे उनमें से किसी ने कहा कि हमें नए बैनर्स प्रिंट करने चाहिए जिसपे हम ओबामा सर का फेस यूज कर सके, राइट। सो उससे क्या होगा कि उनकी ऑलरेडी फेस पे एक जेन्युइनिटी है कि वो ऑनेस्ट लगते हैं, मे बी वी कैन गेट मोर वोट्स। जिस एजेंसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वहां पे कोई ना कोई तो आलसी था। उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग अ फोटोग्राफ क्रिएटिंग अ न्यू बैनर, ही वेंट ऑनलाइन टू लुक फॉर न्यू बेटर इमेजेस और उन्हें ये ब्यूटीफुल रेड ब्लू कॉम्बिनेशन वाला फोटोग्राफ दिखा। उन्होंने वही कंसेप्ट को यूज करके उनके बैनर्स छपवाए और नीचे होप ऐसा टाइटल डाल के एंडोर्स करना शुरू कर दिया। अब बैनर्स है पूरे यूएसए में लगे हुए थे, ये प्रेस मीडिया एजेंसी को पता चल गया। उनके ऑफिस में से एक एनी वन लीड क्या बोलते हैं मीडिया ऑफिस से एक बंदा सर के ओबामा सर के काउंसिल ऑफिस में वॉक इन करता है और बोलता है कि सर मैं मीडिया से हूँ और जो नए बैनर्स लगाए ना आपने, आई वांट टू डिस्कस रिगार्डिंग द सेम। सी इलेक्शन टाइम पे छोटा सा भी मीडिया अटेंशन कैन बी ऑफ लॉट ऑफ हेल्प। सो एक काउंसिल मेंबर वॉक इन करता है, बोलते हैं अरे सर लेट्स टॉक इन आवर कैबिन, जो भी आपको रिक्वायर्ड है आई कैन प्रोवाइड यू विद द सेम। फिर उन दोनों के बीच में बातें शुरू हुई तो मीडिया वाले बंदे ने बोला कि सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो आपने नए बैनर्स लगाए ना, आई वांट यू टू रिमूव इट राइट नाउ। उसकी बात सुन के ना वो काउंसिल मेंबर एकदम बौखला गया। ही वाज लाइक व्हाट, आपने लाइक डू यू नो वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड हुम यू आर आस्किंग, पी कर आए हो क्या, यू ड्रंक इन द मॉर्निंग। तो मीडिया गाय ने बोलना शुरू किया, सर जो बैनर आपने यूज किए हैं उसमें जो इमेज यूज किया है इट वाज क्रिएटेड बाय माय एजेंसी। इधर आप उसे रिमूव कर दो या फिर मैं मीडिया में जा रहा हूं और चिल्लाने वाला हूं कि जिस बंदे को यूएस का प्रेसिडेंट बनना है वो हमें माइनर कॉपीराइट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा। व्हाट इफ टुमारो ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए और हमारे ह्यूमन राइट्स ले ले हमसे। सी इट वाज नॉट अ बिग एजेंडा, बट इलेक्शन के टाइम पे ऐसा छोटा सा स्पार्क भी सामने वाली पार्टी के लिए बहुत पावरफुल वेपन हो जाएगा अपोजिंग पार्टी के लिए। सो जो काउंसिल मेंबर उनसे बात कर रहा था, ही अंडरस्टूड, ही वाज लाइक ओके सी हम बैनर्स तो रिमूव नहीं कर सकते, इट इज काइंड ऑफ आवर प्रेस्टीज इशू, बट मुझे पता है आप मीडिया वाले हो, आप चिल्लाने से तो बाज आओगे नहीं। टिल द इलेक्शंस आर ओवर आई वांट यू टू कीप योर माउथ शट, सो टेल मी व्हाट विल इट टेक, मतलब हम आपको कितना पे करें ताकि आप अपना मुंह बंद इलेक्शंस तक रख सकें। These guys were paid in good amount, जो अमाउंट कभी डिस्क्लोज नहीं हुआ, बट इलेक्शन तक ये न्यूज भी बाहर नहीं आया और इलेक्शन के बाद आया इसलिए वी आर डिस्कसिंग इट, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ही वाज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अ गुड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, राइट। सो अगर आपके पास कॉपीराइट है तो आप ऐसे पावरफुल पर्सन को भी रोक सकते हो। सी इमेजिन करो आपने कोई आर्टिकल लिखा, उसमें आपने बहुत हार्डवर्क करके कैड या कोई भी सॉफ्टवेयर में एक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया और अपलोड किया, एंड अ कंपनी लाइक माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम लव्ड योर वर्क।
अब ये लोग आपके फ्रेंड्स थोड़ी है कि आपने फोन उठाया और बोला अरे बिल गेट्स भैया आपने मेरा इमेज यूज किया है, मत करो ना, या फिर मुझे 1-8 लाख घर भिजवा देना. They are not going to listen to you, right? The only way you can actually stop these people is by showing them that you have the rights on your work, and that is only possible using copyrights. अगर लोग politicians को धमका सकते हैं तो ये तो फिर भी companies है, and that it is possible with a legal document that is copyright. ठीक है. अब कुछ फनी इंसिडेंसेस भी होते हैं रिगार्डिंग प्राइवेसी एंड कॉपीराइट्स. तो दिस इज एन एग्जांपल, ये इंडोनेशिया में हुआ था. इंडिया में ऐसे इंस्टेंसेस बहुत कम होते हैं, बट दिस इज आल्सो अ वायलेशन. अब समझिए, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, वो एक वाइल्ड लाइफ रिजर्व में जाता है जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है इन एन ओपन वाइल्ड लाइफ रिजर्व, और वहां पे जाके उसने एक मंकी के मल्टीपल एक्सप्रेशंस में फोटोग्राफ क्लिक किए. He came back और उन्होंने वो फोटोग्राफ को सेल ऑफ करना शुरू किया एज सेल्फी मंकी इमेजेस करके. आप सबने पीटा के बारे में सुना होगा, PETA. दे आर इनटू एनिमल प्रोटेक्शंस. ठीक है, वो एनिमल्स के अगेंस्ट कोई भी ब्रूटैलिटी हो, वायलेंस हो, इन्फ्रिंजमेंट हो, प्राइवेसी रिलेटेड इशू हो, उसके अगेंस्ट वो आवाज उठाते हैं. तो उन्होंने ऐसा कहा कि एक बंदा जो एक फोटोग्राफर है, उसने एक मंकी के जो रिजर्व में है, जिसको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उसके प्राइवेसी को हार्म किया. उसके परमिशन के बगैर उसके इमेजेस क्लिक किए और अपने प्रॉफिट के लिए उसे सेल किया, which is a complete violation of the wildlife reserve and animal protection. So he should be, punished for that. And actually he was pulled into court for that. उसके अगेंस्ट केस फाइल हुई. उसने एज एन अपॉलॉजी एंड एज अ कंपनसेशन ऐसा कहा कि आई विल पे 25% ऑफ माय प्रॉफिट, जितना भी मैंने अर्न किया है, टू द वाइल्ड लाइफ रिजर्व फॉर द मिस्टेक आई हैव डन. सो ऐसी चीजें भी होती हैं. सी कई बार ऐसा होता है कि लोग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के फोटोग्राफ्स को खुद के दुकान पे खुद के ऑनलाइन सेलिंग पोर्टल पे यूज करते हैं. इट इज एक्चुअली अ वायलेशन ऑफ प्राइवेसी एंड कॉपीराइट्स. जो फोटोग्राफ्स आपको ऑनलाइन दिखती है, इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन नॉट यूज एनीबडीज इमेज फॉर मार्केटिंग पर्पस विदाउट देयर परमिशन. जब भी आप ऐसा यूज करते हैं, या जो भी एक्टर्स अपना फेस कोई भी प्रोडक्ट के साथ लिंक करते हैं, दे साइन एन एग्रीमेंट. अगर आपने वो नहीं किया है, इट इज वायलेशन. सो ऐसी चीजें भी होती है मार्केट में. ठीक है, this is something you all need to understand. अभी आप सब स्टूडेंट्स हैं, बट कमिंग फ्यू इयर्स में या कमिंग फ्यू मंथ्स में आप में से कई लोग इंडस्ट्री ज्वाइन करेंगे, राइट? आप प्रोजेक्ट्स करेंगे इंडस्ट्रीज के साथ, यू विल बी स्टार्ट वर्किंग विद द कंपनी, और यू विल स्टार्ट योर ओन कंपनी. तब ये कॉपीराइट वायलेशन एक बहुत बड़ा मॉनिटरी लॉस या एजेंडा हो सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल, ये एक केस स्टडी है जिससे हमें काफी चीजें पता चलती है और हमें क्या नहीं करना चाहिए वो पता चलेगा. एपिक सिस्टम्स एक सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी है यूएस में. उन्होंने एक हॉस्पिटल चेन के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था. उसके मेंटेनेंस एंड बैक हैंडलिंग के लिए उन्होंने TCS, वी ऑल नो टाटा कंसल्टेंसी, उन्होंने इंडिया से TCS को हायर किया ताकि वो पूरा बैक हैंड और मेंटेनेंस वर्क कर सके. काफी कंपनीज करती है ये लेबोरियस काम, वो इंडियन कंपनीज को हैंड ओवर करती है. अब जब भी एक थर्ड पार्टी कंपनी आपके सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रही है, तो एक अग्रीमेंट साइन होता है. इट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट. एक MOU साइन होता है जिसमें बहुत क्लियरली स्टेटेड है कि हम हमारा डेटा, हमारा क्लाइंट डेटा, हमारे कॉन्फिडेंशियल एल्गोरिथम आपके साथ शेयर करेंगे ओनली फॉर द मेंटेनेंस पर्पसेस. जो हमने अग्रीमेंट में लिखा है सिर्फ उसी पर्पस के लिए. आप इसे यूज, मिसयूज, वायलेट कुछ भी नहीं कर सकते. अगर आप में इसकी कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया है आपने या आपके एम्प्लॉय ने, तो आपको मॉनेटरी लॉस हो सकता है. हम आपको कोर्ट में घसीटेंगे. अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, वो साइन यूजुअली मैनेजर लेवल के पोस्ट वाले लोग करते हैं. बिजनेस मैनेजर्स होते हैं या टेक्निकल मैनेजर्स होते हैं, वो साइन करते हैं. अब वर्क करने कौन आता है? यूजुअली कंपनी के एम्प्लॉइज. अब जो एम्प्लॉय यहाँ पे वर्क करने आया था, ही लव्ड द सॉफ्टवेयर, उसे बहुत इंप्रेसिव लगा. सो व्हेन ही रिटर्न्ड बैक टू इंडिया, उसने सजेस्ट किया कि लेट्स क्रिएट अ सॉफ्टवेयर फॉर द हॉस्पिटल चेन्स हियर इन इंडिया. उन्होंने वो डेवलप किया और मेड मंत्रा के नाम से उसे मार्केट में लॉन्च किया. अब एपिक सिस्टम केम टू नो अबाउट इट. दे स्लैप्ड TCS with the amount of $940 million as damages for violating their privacy, for using their फ्लो एल्गोरिदम. क्योंकि कॉपीराइट वायलेशन एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है.
अगर आपने कॉपीराइट कोई भी कंट्री में फाइल किया है, आप उसे इंटरनेशनली प्रोटेक्ट करते हो. So TCS had to pay off. Imagine करो, एम्प्लॉइज ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एम्प्लॉइज ने सॉफ्टवेयर क्रिएट किया, एम्प्लॉइज ने सॉफ्टवेयर सेल किया, but at the end the company is the person who gets to be liable for any form of infringement. So आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कोई भी एल्गोरिदम है, फोटोग्राफ है, रिटन मटेरियल है, आप अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए यूज करें, इट इज ओके, एजुकेशनल पर्पस के लिए इट्स वेरी कूल. बट आप जैसे ही कमर्शियल वर्ल्ड एंटर करते हैं, जहां पे चीजें मनी के साथ लिंक होती है, फेम के साथ लिंक होती हैं, या फिर आपका एडवर्टाइजिंग के साथ लिंक होती है, आप उसे विदाउट परमिशन यूज नहीं कर सकते. जो भी डेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सो आपको कोई भी चीज जो ऑनलाइन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐसा समझ के यूज नहीं करना चाहिए. इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है, बट यू हैव क्रिएटेड अ वर्क, आपने शायरी लिखी है, आपने पोएट्री लिखी है, आपने कोई शॉर्ट स्टोरी लिखा है, आप जो भी रिटन मटेरियल डेवलप करते हैं, प्रेजेंटेशंस है, लेक्चर्स हैं, ये सभी चीजें आप कॉपीराइट करा सकते हैं. ठीक है, सो हमने एक क्विक Q&A प्रिपेयर किया है जिससे आपके काफी और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो व्हाट डज कॉपीराइट एक्चुअली प्रोटेक्ट? कॉपीराइट बेसिकली एक्सप्रेशन ऑफ वर्क को प्रोटेक्ट करता है. सी, कॉपीराइट कभी भी आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता कि आपने क्या लिखा है, उस आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता, बट किस तरीके से आपने उसे एक्सप्रेस किया है, आपने लिखा है, उसे कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, सो जैसे फॉर एग्जांपल काफी पेंटर्स होते हैं, वो लोग सनसेट या सनराइज पेंट करते हैं. सनसेट एक आइडिया है, आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता, बट आपने किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशंस, उसके अंदर जो एक थ्योरी है, उसे प्रोटेक्ट करता है कॉपीराइट. ठीक है, इज इट नेसेसरी टू रजिस्टर अ वर्क टू क्लेम कॉपीराइट? अगर आपको लीगली क्लेम करना है ओनरशिप, देन यस, आपको कॉपीराइट कराना जरूरी है. ठीक है, वेयर कैन आई फाइल द एप्लीकेशन फॉर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन? पूरे इंडिया में एक ही कॉपीराइट ऑफिस है, दैट इज इन दिल्ली. ये प्रोसीजर इनिशियली ऑनलाइन फाइलिंग का होता है, आप ऑनलाइन फाइल करके आपका डेटा सबमिट कर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन मैनेज होता है, आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. बट आपको पता होना चाहिए कि कॉपीराइट ऑफिस एक ही है इंडिया में, एंड दैट इज इन दिल्ली. ठीक है, कैन आई फाइल अ कॉपीराइट एप्लीकेशन बाय माई सेल्फ? यस, अगर आपको कॉपीराइट फाइल करना है तो आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं. copyright.gov.in इंडिया का ऑफिशियल कॉपीराइट वेबसाइट है, जहां पे जाके आप फाइल कर सकते हैं. आपको लीगल हेल्प, जैसे आप लॉयर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, उनकी जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि आप एरर ना करें डॉक्यूमेंट्स में. कई बार ऐसा होता है कि आपने जब डॉक्यूमेंट फाइल किया तो उसमें एरर होगी, तो पूरा प्रोसीजर का जो टाइम, बेसिकली कॉपीराइट 2 महीने में ग्रांट हो जाता है. बट अगर आपने कोई भी एरर किया तो इट कैन टेक 6 to 12 months और एट टाइम 24 months. तो वो ना हो इसलिए यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एजेंट्स एंड अटॉर्नी, वरना आप खुद भी फाइल कर सकते हो. ठीक है, वेदर अनपब्लिश्ड वर्क्स आर रजिस्टर्ड? यस, आप कॉपीराइट जब फाइल करते हैं तो वो पब्लिश्ड भी हो सकता है या अनपब्लिश्ड वर्क भी हो सकता है, दोनों वर्क के लिए कॉपीराइट फाइल होती है. बट पब्लिश्ड वर्क हो तो आपको ये प्रूव करना जरूरी है कि वो वर्क आपने ही सबसे पहले क्रिएट किया है. Only then you can apply for a published work. Unpublished work के लिए तो obviously आप फाइल कर ही सकते हो. ठीक है, so I hope कॉपीराइट क्लियर है. आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम टुवर्ड्स द एंड हम वही सभी चीजें एड्रेस करेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेडमार्क. हम ट्रेडमार्क एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में लेंगे क्योंकि वो ब्रांडिंग रिलेटेड है. एज ऑफ नाउ आप जो स्टूडेंट्स हैं उनको कॉपीराइट और जो नेक्स्ट टॉपिक है पेटेंट, उस पर ज्यादा फोकस करवाएंगे हम. ठीक है, सो अब बात करते हैं ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क एक प्रोडक्ट की ब्रांड आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है. दैट मींस सपोज मुझे कोई प्रोडक्ट बाय करना है तो मुझे कैसे पता चलेगा इट इज ऑथेंटिक या यही अच्छा प्रोडक्ट है? मैं कैसे पहचानूंगी कि मैं जो बाय करने जा रही हूँ इट्स द ओरिजिनल प्रोडक्ट? यूजुअली उसके नेम, सिंबल्स, टैगलाइंस, जिंगल्स, लोगो, ये ऐसी चीजें हैं जो एक प्रोडक्ट को आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है. लाइक सपोज मैं ड्राइव कर रही हूँ और मुझे अचानक से भूख लगती है और मुझे दूर एक कैपिटल में येलो M दिखाई दे, तो मैं इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करूंगी कि वो मैकडॉनल्ड्स है, राइट? और अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, आई प्रिफर ईटिंग इन गुड फूड चेन्स, राइट? सो मैं मैकडॉनल्ड्स प्रिफर करूंगी. तो उन्होंने वो येलो कैपिटल M को ट्रेडमार्क कराया है ताकि उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट हो. सिमिलरली मैं कपड़े खरीदने जाती हूँ और मुझे एक दूर टी शर्ट पे एक छोटा सा टिक मार्क दिखाई देता है,
तो मैं इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करूंगी इट्स नाइकी, राइट। नाइकी ने वो छोटे से सिंबल से अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट की है। सो इसी तरीके से हर कंपनी जब भी अपनी ब्रांड के लिए एक आइडेंटिटी क्रिएट करती है, वो लोगो हो, सिंबल्स हो, टैगलाइंस हो, तो वो उसे ट्रेडमार्क फाइल करती है। इसलिए कई बार आपने छोटे में TM या R का सिंबल देखा होगा, दैट मीन्स इट इज ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड। एंड कोई भी दूसरी कंपनी वो सेम नाम के साथ या लोगो या सिंबल्स के साथ मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकती। इवन विद द सेम कलर कॉम्बिनेशन भी वो मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। ओके, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें ट्रेडमार्क होती है, जैसे कि साउंड, स्मेल, डायलॉग, वॉइस, ये सभी चीजें भी ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट होती है। अब समझिए क्यों। सपोज मैं मार्केट में परफ्यूम बाय करने जाती हूँ, मैं सिर्फ उसका ब्रांड नेम नहीं चेक करूंगी, आई डेफिनेटली सी कि हाउ गुड द परफ्यूम स्मेल्स, क्योंकि मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं परफ्यूम यूज कर रही हूँ, आई शुड स्मेल गुड। तो हर परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसका नाम तो ट्रेडमार्क करती है, बट उसके स्मेल का भी ट्रेडमार्क फाइल करती है, ताकि कोई कंपिटिटिव कंपनी वो सेम स्मेल के साथ मार्केट में लॉन्च ना कर सके। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, वॉइस, डायलॉग, साउंड, ये चीजें भी ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट होती है, क्योंकि ये भी किसी चीज की आइडेंटिटी है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब हम कार्टून देखते थे, लाइक टॉम एंड जेरी, उसमें स्टार्टिंग में एक शेर के गुर्राने की आवाज आती है, राइट, वो साउंड वॉल्ट डिज्नी का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। अगर हम वो साउंड आज भी कहीं सुने तो हमें टॉम एंड जेरी पहले याद आएगा। सो वॉल्ट डिज्नी ने वो साउंड का भी ट्रेडमार्क कराया हुआ है। ठीक है, अब ये कुछ इंडिया के फेमस ट्रेडमार्क है, लाइक अमिताभ बच्चन जी की आवाज। आप अमिताभ बच्चन जी की आवाज कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए या कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते, हिज साउंड हैज बीन ट्रेडमार्क्ड। ठीक है, वैसे ही सनी देओल जी की आवाज भी ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड है। कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जैसे कि सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान का SRK, नरेंद्र मोदी का नमो, जो ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं मेरा नाम ट्रेडमार्क फाइल कर सकती हूँ? पूजा मेनन। मुझ में और इनमें क्या फर्क है? मुझे पता है आप में से कई लोग अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं कि आप फेमस थोड़ी हो। वेरी ट्रू, अभी के लिए मैं एक ब्रांड नहीं हूं, बट ये लोग एक ब्रांड है। अगर सपोज सचिन टीवी पे आके बोले कि ये RO वाटर प्यूरिफायर बेस्ट है, ये कोरोना मारने में आपकी हेल्प करेगा, तो लोग बिलीव करेंगे, क्योंकि वो सचिन है, ही इज अ लेजेंड इन हिमसेल्फ। अब इमेजिन कीजिए, मैं अगर वो वाटर प्यूरिफायर आपके घर ले आया और बोला कि मैडम ये वाटर प्यूरिफायर जरूर खरीदिए, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, तो आप मेरे मुंह पे शायद दरवाजा बंद कर दो, मुझे सेल्स वुमन समझोगे आप, राइट। सो जो सेलिब्रिटीज की खुद की एक ब्रांड आइडेंटिटी है, जिसके नाम से प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, उनको गवर्नमेंट ये फैसिलिटी देती है कि वो अपना नाम सिक्योर कर सके, ताकि कल को कोई उठ के मैंने एक क्या बोलते हैं, पान का गल्ला खोल दिया और मैंने डाल दिया SRK तंबाकू। हो सकता है ना कि इमेजिन करो, मैंने एक टोबैको का गल्ला खोल दिया और मैंने SRK टोबैको के नाम से सेल करना शुरू कर दिया, कल को टैगलाइंस भी आएगा SRK स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इट कैन बी ऑफ अ ह्यूज प्रॉब्लम, राइट। तो गवर्नमेंट इन्हें ये राइट्स देती है कि वो अपना ब्रांड अपना नाम प्रोटेक्ट कर सके एज अ ब्रांड, ताकि कोई और उनका नाम यूज या मिसयूज उनके परमिशन के बगैर ना कर सके। ठीक है, बट यू एज ए इंडिविजुअल आप क्या करा सकते हो? आप सेलिब्रिटीज तो हो नहीं कि आप अपना नाम कराओ, बट आप जो प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, या आपकी कंपनी खोलना चाहते हो फ्यूचर में, या कोई क्लब ओपन करना चाहते हो, तो उन सब का नाम आप ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करा सकते हो। ठीक है, लाइक सपोज मैंने एक बुक लिखा, तो उसका कंटेंट कॉपीराइट प्रोटेक्ट होगा बिकॉज इट्स लिटरेचर, बट उसका जो नाम है वो मैं ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट करा सकती हूँ। ठीक है, सो आई होप ट्रेडमार्क क्लियर है। अभी हमने दो टॉपिक्स कवर किए, दैट इज ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। सी, कॉपीराइट बहुत सिंपल है, वो आर्टिस्टिक चीजें सिक्योर करता है, एक्सप्रेशंस प्रोटेक्ट करता है, एंड एवरीथिंग अंडर कॉपीराइट इज इलॉजिकल, मतलब कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अभी मैं अगर साउथ इंडियन सॉन्ग में भंगड़ा करूं तो मुझे कोई रोकने नहीं आएगा, इट्स एन आर्टिस्ट टैलेंट, वो मेरा टैलेंट है, मैं कर सकती हूँ, राइट। अगर मैंने पेंटिंग करते टाइम सन को पिंक पेंट किया, मेरी मर्जी, आई कैन डू इट। सो इट्स ऑल अबाउट एन आर्टिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें कोई भी लॉजिकल चीजें नहीं आती। बट जब हम पेटेंट की बात करेंगे, इट इज कंप्लीटली लॉजिकल। दैट मीन्स जब भी आप पेटेंट फाइल करते हैं, दैट मीन्स कोई भी इनोवेशंस करते हैं, आइडियाज,
कंसेप्ट, मैकेनिज्म, मेथड, प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगी. व्हाई इज द नीड ऑफ दिस आइडिया एंड सेकंड, हाउ इज इट इम्प्लीमेंटेड. गवर्नमेंट आपसे प्रोटोटाइप कभी नहीं मांगेगी. ये मार्केट का सबसे बड़ा मिथ है कि मुझे तो प्रोटोटाइप चाहिए फाइल करने के लिए. नहीं, आपको कभी भी प्रोटोटाइप नहीं चाहिए एक पेटेंट फाइल करने के लिए. आपके पास अगर थियोरेटिकल नॉलेज है कि एक प्रोडक्ट कैसे वर्क कर सकता है तो आप पेटेंट फाइल कर सकते हो. ठीक है. सो पेटेंट इज ऑलवेज लॉजिकल. आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स क्या होंगे, कैसे वो वर्क करेगा, क्या प्रिंसिपल्स वर्क करेगा और क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, तो आप पेटेंट फाइल कर सकते हो. बेसिकली पेटेंट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एक होता है यूटिलिटी पेटेंट और सेकंड होता है डिजाइन पेटेंट. अब दोनों का डिफरेंस समझिए. सपोज मेरे पास एक कप है, ठीक है. अब बेसिकली हम कप या मग का यूज क्यों करते हैं? अगर मुझे हॉट या कोल्ड बेवरेज पीना हो तो मैं एक कप का यूज कर सकती हूँ. ट्रू. अब बहुत सारी कंपनीज है जो अलग अलग कप्स या मग्स मैन्युफैक्चर करती है, सिर्फ डिजाइन को चेंज करती है. जब एक प्रोडक्ट का सिर्फ डिजाइन स्ट्रक्चर चेंज होता है तो मैं उस पर डिजाइन पेटेंट फाइल करूंगी. बट इमेजिन कीजिए मैं एक बहुत लेजी पर्सन हूँ. सुबह उठ के ना दूध गरम करो, फिर उसके अंदर सभी इंग्रेडिएंट्स डालो, मतलब लाइक कॉफी पाउडर, शुगर, मिल्क, और फिर हिलाओ मिक्स करने के लिए. इट्स वेरी टायरिंग. सो मैंने एक ऐसा कप इन्वेंट किया एक प्लेटफॉर्म के साथ कि मैं कप को प्लेटफॉर्म पे रख दूंगी. उसके अंदर हाँ ऑब्वियसली मिल्क, शुगर और कॉफी पाउडर तो मुझे डालना पड़ेगा, बट उसके पास एक सेल्फ स्टिरिंग सिस्टम है. दैट मींस 2 चीजें हो रही है. एक, जिस प्लेट के ऊपर मैंने ग्लास को रखा वो इस ग्लास को ऑटोमेटिकली उसके इंग्रेडिएंट्स को हीट करेगा, प्लस मेरे पास एक स्टिरिंग सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली स्टिर करके मुझे स्टारबक्स जैसे एकदम फ्रॉथ्ड कॉफी प्रोवाइड करेगा. सो अब मेरे मग को मैंने फीचर्स प्रोवाइड किए. जब भी मैं किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट का या कोई भी न्यू इन्वेंशन करती हूँ जहां पे डिफरेंट कंपोनेंट्स, वर्किंग मेथड इन्वॉल्व है, तो मैं उस पर यूटिलिटी पेटेंट अप्लाई करूंगी. बट अगर मैंने सिर्फ उसका प्रोडक्ट का डिजाइन स्ट्रक्चर चेंज किया तो मैं उस पर डिजाइन पेटेंट अप्लाई करूंगी. ठीक है. सो आई होप डिफरेंस क्लियर है. एक और एग्जाम्पल ले समझने के लिए. वाटर बॉटल्स, हम सब पानी पीते हैं, यूजुअली बॉटल्स खरीदते हैं मार्केट से. हर अलग कंपनी, लाइक फॉर एग्जांपल बिस्लरी, किनले, हिमालय, सबके अलग अलग पानी की बॉटल्स है. प्लास्टिक बॉटल्स की बात कर रही हूँ. सबका डिजाइन स्ट्रक्चर एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी है. लेकिन मैं दूर से देखूं तो मैं बता दूंगी वो किनले का बॉटल है और वो बिस्लरी का बॉटल है. हर कंपनी जब भी पानी का बॉटल में कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स जस्ट वाटर इनसाइड अ प्लास्टिक बॉटल, सिर्फ उसका डिजाइन स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो मैं डिजाइन पेटेंट फाइल करूंगी. बट देयर इज अनदर कंपनी कॉल्ड मिल्टन. अब वो इनोवेशन करती है. उन्होंने ऐसा कहा कि हमारे बॉटल्स एक तो रीयूजेबल है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर इसके अंदर गर्म पानी डालो तो 24 आवर्स तक उसका पानी गर्म रहेगा. तो उन्होंने कंपोनेंट्स, फीचर्स, मेथड, मैकेनिज्म डाला, तो उन्होंने यूटिलिटी पेटेंट फाइल किया. यस ऑब्वियसली डिजाइन स्ट्रक्चर है अलग है तो डिजाइन पेटेंट तो फाइल कर ही सकते हैं, बट क्योंकि उसके फीचर्स अलग है टू द एग्जिस्टिंग बॉटल्स तो उन्होंने डिजाइन यूटिलिटी पेटेंट अप्लाई किया. ठीक है. सो आई होप यूटिलिटी और डिजाइन क्लियर है. आप जब भी कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो आपको ये सोचना जरूरी है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या वो यूटिलिटी में जाएगा या वो डिजाइन में जाएगा या दोनों में जा सकता है. ठीक है. क्योंकि हम पेटेंट की बात कर रहे हैं, कई बार हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या चीजें पेटेंट होती हैं. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी वो बाइफिकेशन क्रिएट किया हुआ है कि क्या क्या चीजों में पेटेंट अप्लाई नहीं हो सकती. देयर इज एन एंटायर कैटेगराइजेशन ऑफ दैट. तो हम वो पहले समझेंगे कि एज पर इंडियन रूल आप क्या क्या चीजों पे पेटेंट अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. सो ये टॉपिक लेने से पहले समझिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड इन्वेंशन. डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपने सिर्फ ढूंढा उसे. वो लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है. दैट मींस इट हैड इट्स एग्जिस्टेंस बट इट वाज हिडन. आपने सिर्फ उसे ढूंढा तो उसे कहते हैं डिस्कवरी. Invention is something that you created from the things that already existed. अगर आप जैसे स्क्रूज थे, नट बोल्ट था, आईसीज थे, अलग अलग चीजें थी, आपने उसको ज्वाइन करके यू क्रिएटेड अ रोबोट. नाउ दैट्स एन इन्वेंशन. यू आर द क्रिएटर. आप सर्जनहार हो
तो आप उस पे पेटेंट फाइल कर सकते हो. बट समथिंग दैट यू जस्ट फाउंड इज कॉल्ड अ डिस्कवरी. और नॉट जस्ट इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में डिस्कवरीज पे पेटेंट फाइल नहीं होती. ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड. डिस्कवरी ऑफ अ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और फॉर्मुलेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट थियोरी, ये चीज पेटेंट नहीं होती. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, हम सबको पता है कि न्यूटन डिस्कवर्ड ग्रेविटी. न्यूटन ने बताया कि देयर इज सम फोर्स जिसके अगेंस्ट आप सब अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हो. हाँ, डेफिनेटली उन्होंने डिस्कवर किया, उसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम भी दिया, बट वो उसे पेटेंट नहीं करा सकता. न्यूटन ऐसा बोल नहीं सकता मैंने ग्रेविटी ढूंढा है तो अब ग्रेविटी सिर्फ मेरा है, आप लोग यूज मत करो. सो डिस्कवरीज को कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, बट इन्वेंशन को यस, अगर उसने कुछ इन्वेंट किया तो ऐसा बोल सकता है कि आप यूज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस उसके राइट्स मेरे पास हैं. सो दैट्स द पावर ऑफ पेटेंटिंग. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ एनीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग, जैसे मैंने कहा, इधर कोई स्टोन है या कोई एनिमल है, प्लांट है, अगर आपने सिर्फ डिस्कवर किया तो आप उस पर पेटेंट फाइल नहीं कर सकते. ठीक है, एन इन्वेंशन विच क्लेम्स एनीथिंग ऑब्वियसली कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टैब्लिश्ड नेचुरल रूल्स. सी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लाइक लॉ ऑफ मोशन, राइट, कि एक चीज तब तक मूव करेगा जब तक उसके अगेंस्ट कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करता, या फिर विदाउट एन इनपुट देयर कैन नॉट बी एन आउटपुट. एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये सब नेचुरल लॉज है और इसे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया है. अब आपने बोला मेरे पास एक ऐसा इन्वेंशन है जिसमें इनपुट की जरूरत ही नहीं है, आप धाड़ धाड़ आउटपुट रिसीव कर सकते हो. इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इट इज अगेंस्ट नेचुरल लॉज, तो आप उस चीज पे पेटेंट फाइल नहीं कर सकते. ठीक है, एन इन्वेंशन विच कॉजेस हार्म टू ह्यूमन प्लांट एनिमल लाइफ, अगर आपके इन्वेंशन से इधर प्लांट्स या एनिमल्स या ह्यूमंस को तकलीफ हो रही है तो आप उस पे पेटेंट फाइल नहीं कर सकते. बट ऑन द कॉन्ट्ररी, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फॉर्मुलेशंस, दैट मींस जो ऐसे केमिकल्स हैं जिससे पेस्ट को तकलीफ हो रही है, आपने पेस्ट को मार दिया बट उससे प्लांट्स को भी फायदा हुआ और ह्यूमंस को भी फायदा हुआ, ऐसे केमिकल फॉर्मुलेशंस पे आप पेटेंट फाइल कर सकते हो. आई नो देयर इज अ हिपोक्रेसी, बट ठीक है, इट्स ओके. आप जो चीज ह्यूमन, जैसे बॉम्ब है या गन है, ऐसी कोई चीज है, देन दे कैन एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट यू. बट आप अगर कोई भी केमिकल है जिससे ह्यूमंस को बेनिफिट हो रहा हो, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड. ठीक है, mere discovery of a new form of known substance, आप डिस्कवरी है. सी फॉर एग्जाम्पल ने आपको बहुत क्लियर होगा, कार्बन, ग्राफाइट, डायमंड. हमें पता है कि ग्राफाइट और डायमंड जो है उसको कार्बन के आइसोटोप्स कहा जाता है, राइट, है तो कार्बन ही, बट इट इज स्टिल फाउंड, और बाकी जो फॉर्म्स है उसके वो अभी भी अर्थ के अंदर से ही डिस्कवर हुए हैं. उससे क्या कहते हैं, कुछ इन्वेंटिव नहीं है, बट there is an entire field of nanotechnology जहां पे कार्बन नैनो ट्यूब से अलग अलग चीजें बन रही है, राइट. नाउ दैट इज कॉल्ड एन इन्वेंशन. ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत इन्वेंशंस होते हैं, इट इज पेटेंटेबल, बट जहां पे हमने एक फॉर्म को चेंज किया which is already available in the earth और आपने ढूंढा, it cannot be patented. So अब आपको concept of discovery and invention बहुत अच्छे से clear हुआ होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो गलती काफी लोग करते हैं क्योंकि हम इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं. अब मियर अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइस. अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर सपोज आपने कुछ ऐसा इन्वेंट किया, अब ऐसा है कि कोई एक प्रोडक्ट है, उसका फ्लो है A to B, आपने कहा एक ABC, और आपने कहा नहीं एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे जिगजैग करते हैं और मैं करता हूँ CBA. आपने सिर्फ उसका लोकेशन और पोजीशन चेंज किया है, ऐसी चीजों का पेटेंट नहीं होता. पेटेंट ऐसी चीज का होता है कि जब आप दो चीज को मर्ज करो तो दे हैव टू बी इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर द न्यू प्रोडक्ट टू वर्क. फॉर एग्जांपल, स्केट व्हील्स, शूज और व्हील्स को मैंने मर्ज किया तभी ही स्केट व्हील्स बन सकता है. दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर इट टू वर्क. ठीक है, अब आपने से बोला, एग्जांपल लेते हैं, यार मैं चेयर पे बैठता हूँ और अचानक से जब रात को लाइट चली जाती है तो टॉर्च ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है. मैं एक काम करूंगा, टॉर्च को चेयर के साथ अटैच कर दूंगा. सी, इट्स अ न्यू पेटेंट, ग्लोइंग टॉर्च विद द चेयर. अब इट कैन नॉट बी पेटेंटेड क्योंकि वो दोनों इंडिविजुअल प्रोडक्ट है. अगर मैं वो टॉर्च को मेरे सामने वाले टेबल पे भी रख दूं ना, तो भी वो टॉर्च बराबर काम करेगी और मेरा चेयर बराबर काम करेगा. इट डज नॉट हैव टू वर्क टुगेदर. But so it is not a patent.
ऐसी चीजें पेटेंट नहीं होती है। बट अब हम दोनों को साथ में वर्क कराते हैं। अब मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि टॉर्च को चेयर के साथ अटैच किया है। जितनी बार मैं चेयर पे बैठती हूँ, उठती हूँ, तो एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, जिससे एक एनर्जी, एक चार्ज जनरेट होगा जो टॉर्च की बैटरी को चार्ज करता रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब मैं चेयर पे बैठी हूँ और अचानक से रूम में अंधेरा हो जाता है, तो मेरा बल्ब, मेरा जो टॉर्च है, वो ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा। नाउ दिस इज अ स्मार्ट सिस्टम, एंड क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है, टू गेट द चार्ज एंड टू ग्लो जब पर्सन बैठा है, इट्स ऑल इंटरडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ दिस इज पेटेंटेबल। सो आपको सोचना चाहिए कि जब भी आप दो चीजों को मर्ज कर रहे हो, क्या उसे अलग करने से सिस्टम अभी भी फंक्शनल है? अगर है, देन इट कैन नॉट बी पेटेंटेड, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के सेक्शन में कैच हो जाएगा। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है। आपने ऐसा बोला कि मैंने सीड बोने के लिए एक हाथों से एक डिफरेंट एक्शन इन्वेंट किया है, गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। बट यू हैव इन्वेंटेड अ सिस्टम, अ मेथड, अ कंपोनेंट, जिससे आप ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपने एक रोबोट क्रिएट किया जो चलता जाएगा और सीड डालता जाएगा, वो रोबोटिक सिस्टम, इट इज पेटेंटेबल। आप जब भी एक नया कंपोनेंट या एक मशीनरी इन्वेंट करोगे, तो उसे आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली मेडिसिन में भी उसी तरीके से कोई डायग्नोस करने के लिए या ट्रीट करने के लिए कोई मेथड हो, तो आप उस पे पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। बट इंस्ट्रूमेंट है, कंपोनेंट है, मशीनरीज है, जिसपे आप किसी को हेल्प कर सको, जैसे कि स्कापल्स है, नाइफ्स है, कैट स्कैन मशीन्स है, एमआरआई मशीन्स है, दीज आर ह्यूज ह्यूज इन्वेंशंस। एक्सरेज है, ये सब इन्वेंशंस है जिससे आप इंसान की हेल्प कर रहे हो, इन द मेडिकल फील्ड को एनहांस कर रहे हो। दीज थिंग्स आर पेटेंटेबल, ठीक है। इंडिया में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, अगर आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप किया है वो, बिजनेस आइडिया, कुछ भी सेल या बाय करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के लिए कोई बिजनेस आइडिया है वो, और प्योर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो सिर्फ एक एल्गोरिदम है या फिर एक मोबाइल एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, ऐसी चीजें पेटेंट नहीं होती, लाइक गेमिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर आप में से कोई भी कंप्यूटर या आईटी सेक्टर में है एंड यू वांट टू फाइल अ पेटेंट, आपको उस एल्गोरिदम को कोई हार्डवेयर के साथ लिंक करना पड़ेगा। द बेस्ट एग्जांपल इज, हम सब ऐसी जनरेशन में है जहां पे हम आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल वीआर, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इसमें वर्क करते हैं। सी, एट द एंड ऑफ द डे दीज ऑल थिंग्स आर सॉफ्टवेयर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो एक प्रोडक्ट को इतना केपेबल बना रहा है या इंटेलिजेंट बना रहा है कि इट कैन वर्क ऑन इट्स ओन। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक फायर अलार्म है, ठीक है, उसको मैंने स्मार्ट बनाया। मेरे पास एक ऐसा एल्गोरिदम है जिससे वो पूरा फायर अलार्म स्मार्ट हो जाएगा। कैसे? एक तो वो फायर या स्मोक एनालाइज करेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट वो जितने भी स्प्रिंकलर्स लगे हैं घर पे उसको एक्टिवेट कर देगा उतने एरिया में जहां पे आग लगी है, एंड वो इमरजेंसी सर्विस को नोटिफाई कर देगा कि इस घर में आग लगी है, ठीक है। सो इट इज परफॉर्मिंग 3 एक्शन, जस्ट स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, इट इज मेड स्मार्ट बाय प्योर सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, ठीक है। और कोई भी ऐसा इन्वेंशन है जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज लाइक आयुर्वेदा या फिर कोई भी ऐसी नॉलेज है जो हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिली है, तो आप उस चीज पे भी पेटेंट फाइल नहीं कर सकते। बट दिस इज द बेस्ट फैक्ट, वर्ल्ड में 90% पेटेंट इंप्रूवमेंट पे फाइल होती है। दैट मीन्स दिस इज समथिंग यू ऑल नीड टू नो। लोग कहते हैं ना पेटेंट कराना बहुत मुश्किल है, समथिंग न्यू होना चाहिए। हाँ, न्यू होना चाहिए, इतना 1% एग्जिस्टिंग कोई भी प्रोडक्ट में आपको अगर फॉल्ट दिखता है या फ्लॉ दिखता है, 1% अगर आप मॉडिफाई कर सके तो आप उस पर पेटेंट फाइल कर सकते हो, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल्स। पहले ग्रामोफोन्स हुआ करते थे, फिर आया कैसेट प्लेयर्स, सीडी प्लेयर्स, वॉकमैन, आईपॉड। ये सभी इंस्ट्रूमेंट को बेसिकली किसी को अगर म्यूजिक सुनना है तो वो यूज कर सकता है, ट्रू। अब किसी ना किसी ने तो सोचा होगा ना कि अगर मुझे चलते चलते म्यूजिक सुनना है तो मैं वो हैवी ग्रामोफोन हाथ में उठा के नहीं चल सकती, तो किसी ने वॉकमैन का इन्वेंशन किया। इसी तरीके से आपके आजू बाजू जितनी चीजें हैं वो मॉडिफाई हुई है। लाइक अदर गुड एग्जांपल इज योर मोबाइल फोन्स। पहले 90s के किड्स ने लैंडलाइन यूज किया, राइट। बहुत इरिटेटिंग है, सोचो आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ गॉसिप कर रहे हो और आपकी मम्मी पीछे से सारी बातें सुन रही हो। फिर आया कॉर्डलेस फोन, थैंक गॉड आप एटलीस्ट फोन लेके दूसरे रूम में जाके आपके फ्रेंड के साथ गॉसिप कर सकते हो। उसके बाद आया मोबाइल फोन्स, नॉर्मल पोर्टेबल, वो डायल पैड वाले मोबाइल्स, एंड नाउ वी हैव एन एरा, अ जनरेशन ऑफ स्मार्टफोन।
राइट? आप ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके स्मार्टफोन्स के साथ नहीं कर सकते, राइट? या कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपका स्मार्टफोन प्रोवाइड नहीं कर सकता. दैट इज द एवोल्यूशन वी सॉ. तो ये पॉसिबल है. एवरी 1%, आप 100 बच्चे यहाँ पे सेशन में होंगे, हर 100 बच्चे के पास डिफरेंट फोन होगा. एवरी इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट फोन. हर मॉडिफिकेशन, 1% मॉडिफिकेशन इन योर प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैन प्रोवाइड यू विद द पेटेंट राइट्स. ठीक है. अब पेटेंट फाइल करने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो. छोटी छोटी चीजों के अगेंस्ट भी पेटेंट फाइल होती है. लाइक 2002 में यूएस में एक बंदे ने झूला झूलने के मेथड पे पेटेंट फाइल किया. उन्होंने ऐसा कहा, यूजुअली ना लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसमें 90 डिग्री एंगल पे झूला झूलते हैं. इट्स वेरी बोरिंग. मेरे पास एक ऐसा मेथड है जिससे आप 45 डिग्री एंगल पे झूला झूल सकते हो और उसमें ज्यादा मजा आता है. इट्स एन अप्रूव्ड रजिस्टर्ड पेटेंट. ठीक है. इसी तरीके से छोटी छोटी चीजें जैसे आपका स्टेपलर पिन्स है, यू पिन्स है, सेफ्टी पिन्स है, अगर आप उसमें कुछ भी डिफरेंट करते हो तो ऐसी छोटी छोटी चीजें भी पेटेंट होती है. ठीक है. नाउ क्योंकि हम पेटेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक कंपनी का एग्जांपल लेंगे, एप्पल का, जहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने एक प्रॉब्लम ढूंढा और उसके सोल्यूशन से एक बहुत बड़ा मार्केट उन्होंने कैप्चर किया. लाइक हम सब बेंडेबल फोन के बारे में काफी टाइम से सुन रहे हैं कि ऐसा फोन जो बेंड हो सकता है, राइट? अब एप्पल ने ऐसा कहा कि वी नीड समथिंग इनोवेटिव इन दिस सेक्टर, क्योंकि फोल्डेबल मोबाइल डिस्प्ले वो दूसरी कंपनी के पास है, ये जो कंसेप्ट ऑफ फोल्डेबल फोन है वो दूसरी कंपनी के पास है. व्हाट कैन वी डू टू बी इन द मार्केट जब फोल्डेबल फोन्स आएंगे? तो एक बंदे ने बहुत इन्वेंटिव सजेशन दिया, लेट्स क्रिएट फोल्डेबल मोबाइल कवर्स. अभी के एग्जिस्टिंग मोबाइल कवर्स अगर आप ये बेंडेबल फोन के साथ यूज करोगे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम समझो, अगर फोन बेंड होगा तो अभी के जो प्लास्टिक कवर्स है वो बेंड नहीं होंगे, और जो रबर इलास्टिक कवर्स हैं, अगर आपने उसे बेंड किया तो वो साइड से बल्ज आउट हो जाएगा. इमेजिन करो हाथ में लाखों का फोन है एंड अ वेरी बैड मोबाइल कवर. तो इन्होंने ऐसा एक मटेरियल डिजाइन किया जो वो फोन इलेक्ट्रॉनिक गुड जो भी आपका है, मोबाइल है या आईपैड आईपैड है या जो भी है, उसके आजू बाजू स्टिक हो जाएगा. दैट मीन्स जिस तरीके से वो फोन मूव करेगा उस हिसाब से आपका कवर भी ऑटोमेटिकली एडजस्टिंगली मूव करेगा. जब उन्होंने वो कवर डिजाइन किया तो उसका जो वर्किंग है, मटेरियल है, कंपोजिशन है, बेंडेबिलिटी है, उन सब चीजों को मिला के उन्होंने यूटिलिटी पेटेंट फाइल किया. और सेम प्रोडक्ट को जब उन्होंने डिजाइन किया अपने हैंडसेट्स के लिए तो उन्होंने उस डिजाइन पे डिजाइन पेटेंट अप्लाई किया. सो आप देख सकते हैं एक ही कंसेप्ट के अगेंस्ट दो पेटेंट फाइल होती है, एक यूटिलिटी फॉर द वर्किंग मैकेनिज्म एंड क्रिएशन, एंड डिजाइन जो सिर्फ उसके स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है. एक एप्पल फोन के अंदर, एक नॉर्मल एप्पल फोन के अंदर 200 पेटेंट होती है. सी, Apple is not just expensive because they are a huge brand. Yes, they are a huge brand, but वो अपने हर प्रोडक्ट में इतना इन्वेस्ट करती है कि उनकी हर एक छोटी सी छोटी चीज, इवन वो स्क्रू क्यों ना हो, वो भी पेटेंटेड होती है. ठीक है. अब पेटेंट की बात करेंगे तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पेटेंट फाइल करने के लिए, या डिग्री क्या होनी चाहिए, या एज क्या होना चाहिए. ये इंडिया का यंगेस्ट पेटेंट होल्डर है. ही वाज ओनली 9 years old, रिदेश्वर भट्टी, जब उन्होंने पहला पेटेंट फाइल किया. currently he is only 14 or 15 years of age and still has 9 patents in his name. 9 पेटेंट का ओनर है वो बंदा. सो एज, करियर, कोई चीज मैटर नहीं करता. एक इनोवेटिव आइडिया हो तो आपको सिर्फ पेटेंट फाइल करने से कोई नहीं रोक सकता. ठीक है. अब हम कुछ पेटेंट्स ऐसे देखेंगे जो हमने बैठे बैठे ना ग्रुप में जब हम गप्पे मारते ना तब सोचा होगा, बट इन कंपनीज के पास उसके पेटेंट राइट्स हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल Amazon के बारे में अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि Amazon पता है, सबसे पहले उन्हें हारे वो ऑनलाइन शॉपिंग वाला साइट. बट डू यू नो Amazon हैज अ ह्यूज R&D सेक्शन. वो लोग अलग अलग ड्रोन्स पे वर्क कर रहे हैं पिछले कई सालों से. उनके पास एक जो है वो दैट इज कॉल्ड अ सर्च ड्रोन. वो ऐसा कहते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे लोग गैदर होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया में काफी बार जैसे कुंभ का मेला होता है, लोग गैदर होते हैं एंड 100% देयर इज अ बिग चांस कि कोई ना कोई खो जाएगा. अब प्रैक्टिकली कोई बंदा आके भीड़ में किसी को ढूंढे, वो इम्पॉसिबल है. तो उन्होंने एक ड्रोन डिजाइन किया जो क्राउड के ऊपर हवर कर सकता है और
जब भी वो पर्सन उसका डेटा ऑब्वियसली इमेज को फीड कर सकते हैं, जैसे ही वो पर्सन आइडेंटिफाई हो जाए वो स्टॉप हो जाएगा और वो इंडिकेट करेगा कि लुक आई फाउंड द पर्सन, आई हैव फाउंड द पर्सन, और फिर कोई भी आके वो भीड़ में से वो पर्सन को बाहर निकाल सकता है। दे हैव डिजाइन्ड अ सर्च नोड। ऐसी चीजें हम कितनी बार सोचते हैं यार, इतनी भीड़ में लोग खो जाते तो क्या कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू थिंक, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपको बनाना नहीं है, जस्ट थिंक, कंसेप्ट डिजाइन करो और उस चीज पे भी आप पेटेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, एक बंदे ने क्या बोला, इमोटिकॉन्स, हम जो स्माइली फेसेस यूज करते हैं, यूजुअली अगर आपको कीपैड से यूज करना है तो आपको सिंबल्स का जो कोड है वो पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको स्माइली विंक फेस चाहिए तो आप वो सेमीकोलन विद कर्व ब्रैकेट यूज करते हो, राइट। सो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं एक कीबोर्ड ही ऐसा डिजाइन करूंगा जिसमें ऑलरेडी इमोटिकॉन्स प्रीफेड होगा। आपसे वो बटन को प्रेस करोगे तो स्माइली आ जाएगा, दूसरे बटन को प्रेस करोगे तो एंग्री फेस आ जाएगा। ऐसा एक कीबोर्ड डिजाइन किया है, इट्स अ डिजाइन पेटेंट। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं है, तो एक एग्जांपल से आपको समझाना जरूरी है। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड वर्नेटेक्स, वो सिर्फ 15 जनों की स्टाफ वाली कंपनी है और वो साल में करोड़ों कमाती है। यू नो हाउ? वो आइडिया, अपकमिंग आइडियाज पे पेटेंट फाइल करती है और बड़े बड़े कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इनको सिर्फ आइडिया लाइसेंस करती है कि क्योंकि आपको हमारा जो क्रिएटेड प्रोडक्ट है, जस्ट माइंड से क्रिएट इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट है, उस पे आपको फिजिकल प्रोडक्ट डेवलप करना है, तो आप हमें पे ऑफ करोगे ताकि आपको हम लाइसेंस दे कि आप यूज कर सको। सो दिस इज हाउ एक्चुअली पेटेंट वर्ल्ड शुड वर्क। आपके पास कोई आइडिया है, प्रोडक्ट बनाने मत जाओ, फाइल अ पेटेंट एंड वेट, लेट समबडी यूज इट और मिस यूज इट, फिर आप खड़े होकर लीगल एक्शन ले सकते हो उनके अगेंस्ट। ठीक है, there are few Q&A, हम पहले वो लेंगे और उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। ठीक है, सो कैन एनी इन्वेंशन बी पेटेंटेड आफ्टर पब्लिकेशन और डिस्प्ले इन पब्लिक एग्जीबिशन? नो 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 नो, प्लीज समझिए, अगर आपके पास कोई आइडिया है, उसे पब्लिश करने से पहले, उसे किसी को बताने से पहले, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शो ऑफ करने से पहले पेटेंट फाइल करिएगा। गवर्नमेंट का रूल नंबर 1, anything that is published cannot be patented। मतलब आपने उसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कर दिया है, गवर्नमेंट वैलिडेशन में वो पकड़ा जाएगा। वो सिर्फ गवर्नमेंट पेटेंट डेटाबेस नहीं चेक करती, हर ओपन डेटाबेस, ओपन प्लेटफॉर्म चेक करेगी। अगर वो कैच हो गया और आपका डेट ऑफ पेटेंट फाइलिंग डेट ऑफ पब्लिकेशन के बाद है, तो आपको पेटेंट राइट्स नहीं देगी। इट्स ऑलवेज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो फाइल अ पेटेंट फर्स्ट एंड देन एंडोर्स इट वेयरएवर यू वांट। ठीक है, Is there any jurisdiction for filing patent in India? Yes, इंडिया में 4 पेटेंट ऑफिसेस है और वो हर एक स्टेट को एक ऑफिस के साथ डेडिकेट किया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो आपका जुरिस्डिक्शन जो है वो मुंबई ऑफिस आएगा। अगर आप हिमाचल प्रदेश में हैं तो आपका जुरिस्डिक्शन दिल्ली आएगा। इसलिए हर एक स्टेट को डिफाइन किया गया है। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो है, जो आप अभी कहाँ है उससे मैटर नहीं करता, आप एड्रेस कौन सा देने वाले एप्लीकेशन में उससे मैटर करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप छत्तीसगढ़ में हैं बट आप रहने वाले यूपी के हैं, तो आपका जुरिस्डिक्शन दिल्ली आएगा, मुंबई नहीं आएगा। ठीक है, अब कहीं, सो दैट इज हाउ द जुरिस्डिक्शन इज ऑलरेडी डिसाइडेड, उसके बेसिस पे आप वहां के ऑफिस में फाइलिंग कर सकते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ द पेटेंट? अगर आप पेटेंट फाइल करते हैं, अगर एक यूटिलिटी पेटेंट है तो उसकी लाइफ है 20 इयर्स, अगर आप एक डिजाइन पेटेंट फाइल करते हैं तो उसकी लाइफ है 15 इयर्स। ठीक है, डज इंडियन पेटेंट गिव प्रोटेक्शन वर्ल्ड वाइड? काफी लोग ये हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी कंट्री का पेटेंट इंटरनेशनल प्रोटेक्शन नहीं देता। दैट मीन्स इफ यू हैव फाइल्ड अ पेटेंट इन इंडिया, योर आइडिया इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ओनली इन इंडिया। अगर आपने इंडिया में फाइल किया है तो कोई भी इंडिया में मैन्युफैक्चर सेल नहीं कर सकता आपके अलावा, विदाउट योर परमिशन। बट अगर किसी ने सेम आइडिया को यूएस में डेवलप करके यूएस में सेल ऑफ किया, तो आप उन्हें विदाउट फाइलिंग अ यूएस पेटेंट आप उन्हें नहीं रोक सकते। तो आपको जिन जिन कंट्री में आइडिया को प्रोटेक्ट करना है, उस हर एक कंट्री में आपको पेटेंट फाइल करना पड़ेगा। देयर इज अ गवर्नमेंट प्रोविजन फॉर दैट, आपको वो यूज करके आप फाइल कर सकते हो। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट इट इंटरनेशनली इफ यू वांट टू स्टॉप द आइडिया इंटरनेशनली। नहीं तो प्रोटेक्शन सिर्फ उस कंट्री के लिए आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। This is why you should file a patent. See,
इंडिया अभी इंटरनेशनली 7th रैंक कर रहा है इन द नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड, 7th, एन इम्प्रेसिव नंबर। बट आपको पता है, लेट्स लुक एट द काउंट। वर्ल्ड में चाइना 1 पे है, नंबर 1 पे, विथ ईयरली एवरी ईयर वो 15 लाख के ऊपर पेटेंट्स फाइल करती है पर ईयर। उसके बाद सेकंड पे है यूएस, जो ईयरली 6 लाख के आसपास पेटेंट फाइल करती है। देयर इज ऑलमोस्ट अ गैप ऑफ 9 to 10 lakhs बिटवीन यूएस एंड चाइना। सी, उन दोनों के बीच का वॉर सिर्फ ईगो नहीं है, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा हिडन इंटेलेक्चुअल वॉर चल रहा है। अगर चाइना मार्केट में आ गया और उसने बोला मेरे पास पेटेंट राइट्स है, तुम बना नहीं सकते, बहुत लोगों को तकलीफ हो सकती है। दैट इज व्हाई दे कीप ऑन फाइटिंग टू हैव राइट्स ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, इस कंपैरिजन में इंडिया 130 करोड़ की पॉपुलेशन एंड राइजिंग, स्टिल ईयरली सिर्फ 50,000 पेटेंट फाइल करती है, सिर्फ 50,000। उसमें से भी 60% पेटेंट बाहर की कंपनीज आके इंडिया में फाइल करती है, लाइक Amazon ने फाइल किया, गूगल ने फाइल किया, एप्पल ने फाइल किया। पेटेंट्स इंडिया में फाइल हुई है बट राइट्स इंडिया के नहीं रहेंगे। सो इट्स बैड। और वो 40% से भी बहुत कम ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स ने फाइल की होगी, या फैकल्टीज ने फाइल की होगी, या इंस्टीट्यूशंस ने फाइल की होगी। सो अगर आपको वर्ल्ड के रेस में उतरना है, सी हमको ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, you know, to get jobs, to get into best colleges. Actually there is no competition. हम सब resumes लिखते हैं, आप किसी भी जन का resume उठाओगे दूसरे का कॉपी पेस्ट होगा, the same boring. I have innovative mindset, मेरे problem solving skills बहुत अच्छे हैं, prove it. पेटेंट, कॉपीराइट ऐसे IPRs हैं जिनसे आप प्रूव कर सकते हो कि आप इनोवेटिव माइंडसेट कैरी करते हो और आपने इनोवेशन किया है लाइफ में। और उसके बाद आप मल्टीपल स्कॉलरशिप फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस, इजी प्लेसमेंट, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि उसका एम्प्लॉय एक इनोवेटिव माइंडसेट वाला हो, और आपके पास पेटेंट्स है, दे विल हायर यू लाइक नोबडी एल्सेस बिजनेस। सो अगर आपको आपके पोर्टफोलियो को डेवलप करना है, एनहांस करना है, go with IPR filing and that is the only thing that can help you. ठीक है, so अब हम कई सालों से आपके इंस्टीट्यूट के साथ वर्क कर रहे हैं और हमने काफी स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को हेल्प किया है। अब कैसे? बेसिकली हम हर जिस स्टूडेंट को, जिस फैकल्टी को इंटरेस्ट है, हम उनके साथ इंटरैक्ट करते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है, उसको समझते हैं। उसे दो तरीके से बाइफर्केट कर सकते हैं। एक, डेफिनेटली 100% उनका आइडिया पेटेंटेबल है तो हम उसे पेटेंटेबल की कैटेगरी में उनकी फाइलिंग और एवरीथिंग में हेल्प करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस उनका आइडिया पेटेंटेबल नहीं है तो हम उन्हें एनहांस करने में, मॉडिफाई करने में, 1% पेटेंटेबिलिटी लाने में हेल्प करते हैं। सी, यू ऑल आर इंजीनियर्स, हम एक डायरेक्शन हट के सोच सकते हैं जिससे हम प्रोडक्ट को नया डायरेक्शन दे सकें। सो IPR टीम, एज IPR टीम, हमने काफी स्टूडेंट्स और फैकल्टीज को हेल्प किया है एंड वील बी हेल्पिंग यू फॉर द सेम। एंड योर इंस्टीट्यूट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। वो आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने वाले हैं, उसके सारे डिटेल्स आपको इंस्टीट्यूशन से मिल जाएंगे। बट अगर आपका पोर्टफोलियो आपको डेवलप करना है, दिस इज वेयर यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड ब्रिंग। आप हमसे कभी भी, कोई भी टाइम में डिस्कस कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी आपकी कॉलेज के साथ MOU है, इसलिए आप कभी भी आके हमसे आइडिया डिस्कस कर सकते हैं। इट विल ऑलवेज बी कॉन्फिडेंशियल बिटवीन यू, द इंस्टीट्यूट, यू एंड अस। ठीक है, तो अब जितने लोगों को कोई क्वेश्चन है, यू कैन एक्चुअली आस्क अस और हम उसे वन बाय वन एड्रेस करेंगे। एंड ध्रुव ब्रह्मभट्ट सर भी हमें ज्वाइन करेंगे फॉर द Q&A राउंड। थैंक यू। Thank you, Pooja madam. It was really interesting. मुझे लगता है कि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स तो क्लियर हो गए हैं, फिर भी कुछ जो डाउट्स हैं, let's see, we will cover up and we will take the help of Dhruv sir also for the same. Dhruv sir, I will ask you the first question which has come up, which is really funny. Can I copyright my tweet? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ट्वीट, कैन आई कॉपीराइट माय ट्वीट? You are on mute. Dhruv sir, आप you are on mute. Please unmute. Okay. Yeah. So sorry. सर, जैसे कि हमने बोला,
क्रिएटिविटी फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 लाइन की या 2 लाइन की है या 200 लाइन की है, राइट? अगर आप 2 लाइन की शायरी भी लिख सकते हो तो आप उसको भी कॉपीराइट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप कोई भी ट्वीट लिख रहे हो, कुछ भी कुछ क्रिएटिव लिख रहे हो और उसको पब्लिश करने से पहले आप ट्वीट कर सकते हो डेफिनेटली, पर ट्विटर आपको उसके लिए पैसे नहीं देगी। क्यों? क्योंकि आप आपकी मर्जी से वहां उनका प्लेटफॉर्म यूज करके वहां पे आप पब्लिश कर रहे हो, राइट? तो ट्वीट को आप कॉपीराइट कर सकते हो, लेकिन मॉनिटरी बेनिफिट शायद आप वहां से ना गेन कर पाओ। या ओके, सेकंड क्वेश्चन, एक स्टूडेंट ने पूछा है, व्हाई शुड स्टूडेंट गो फॉर आईपीआर? बिकॉज वी आर कंडक्टिंग दिस वेबिनार फॉर द स्टूडेंट्स, और एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि व्हाई शुड स्टूडेंट गो फॉर आईपीआर? शायद मैं थोड़ा टाइम लूंगा इसका आंसर देने में। मैं ना आपको एक सिनारियो, आप लास्ट ईयर में आप आपका रिज्यूमे बनाओगे, आप आपका सीवी जब आप बनाओगे, उस टाइम पे एक चीज आपको देखनी है कि मैं मेरी सीवी में क्या नया डाल सकता हूँ। अगर ईयरली इतने सारे लोग इंजीनियर हो रहे, पास हो रहे, अपना अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, सबको जॉब चाहिए, सबको कुछ नया करना है, तो मैं मेरे रिज्यूमे में क्या नया कर सकता हूँ? सर 10 में से 8 रिज्यूमे ऐसे होंगे ना जो अपने सीवी में लिखते होंगे मैं इनोवेटिव माइंडसेट का हूँ। 10 में से 7 लोग ऐसे होंगे कि वो बोलते हैं कि मुझे क्रिएटिविटी का शौक है, मैं काफी क्रिएटिव माइंडसेट का हूँ, लेकिन उसका प्रूफ क्या है? सर मैं बोल रहा हूँ कि आप आपका सीवी वहीं का वहीं रखो, आप वहां पे एक लाइन लिखो कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज पे मेरे पेटेंट हासिल किया है, पेटेंट फाइल किया है, या फिर ये पर्टिकुलर बुक का कॉपीराइट मेरे पास है। सामने वाला समझ जाएगा कि आप इनोवेटिव माइंडसेट से हो, सामने वाला समझ जाएगा आप क्रिएटिव माइंडसेट से हो। तो आपको ये जो भीड़ है ना वहां से अलग रखती है। जैसे कि पूजा मैम ने बोला कि सर 130 करोड़ की पॉपुलेशन में से 25,000 इंडिविजुअली ऐसे होंगे जो आईपीआर फाइल करते हैं, तो आपकी कंपटीशन वो 130 करोड़ के साथ नहीं होगी, फिर वो आपकी कंपटीशन हो जाएगी 25 to 30,000 लोगों के साथ जो सही में इनोवेटिव माइंडसेट का है। तो वो प्लेटफॉर्म वो ना भीड़ से अलग करता है आईपीआर, इसीलिए स्टूडेंट को करना चाहिए आईपीआर, और शुरू से सोचना चाहिए, क्योंकि ये एज है ना जहां पे आपको सबसे ज्यादा इनोवेटिव थॉट आते हैं। धीरे धीरे तो आप है ना एक सिस्टम में आप घुस जाओगे, पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर फील्ड के ही आइडिया आपको आए, पर जब स्टूडेंट होते हो ना मल्टीपल चीजों के आइडिया आपके दिमाग में आते हैं, आप उसको राइट ले लो। हम नहीं बोलते कि आपका एजुकेशन में आप थोड़ा भी ब्रेक लो, देखो आपके पास आइडिया आता है, आप हमारा कांटेक्ट करो, वहां पे जो आपके आईपीआर कोऑर्डिनेटर है आपके इंस्टीट्यूट के, आप सिंपल उनका कांटेक्ट करो, आपका 1 मिनट भी एक्स्ट्रा हम वेस्ट नहीं होने देंगे फॉर श्योर, और आपको आईपीआर हम आपको फाइल या रजिस्टर करके दे सकते हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है आईपीआर फाइल करना। यस सर। ट्रू, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द क्राउड। राइट, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में तो बहुत जरूरी है। दूसरा, एक रेगुलरली जो क्वेश्चन बच्चों से आता है, एक तो कॉस्ट आईपीआर फाइल करने का, और दूसरा हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गेट आईपीआर प्रोसेस्ड, रफली व्हाट विल बी द टाइम ड्यूरेशन? पूजा। ओके, अब हर एक कॉपीराइट की प्रोसीजर टाइम डिफरेंट है। जैसे अगर आप कॉपीराइट फाइल करते हैं, उसका फाइलिंग टाइम इज लाइक 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट लगेगा एक कॉपीराइट फाइल करने में। अब गवर्नमेंट का प्रोसेसिंग टाइम इज अराउंड 45 days to 60 days। इट कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन आपने सॉफ्टवेयर फाइल किया है या लिटरेचर वर्क, बट वेरीज अराउंड 45 to 60 days में आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। एंड कॉपीराइट का लाइफ टाइम जो टेन्योर है, दैट इज मच मोर, इट इज लाइक टिल द ऑथर इज अलाइव एंड 60 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर। मतलब एक आर्टिस्ट की डेथ के बाद भी 60 years तक उसकी फैमिली उससे रॉयल्टी अर्न कर सकती है। द बेस्ट एग्जांपल इज माइकल जैक्सन, राइट? सो कॉपीराइट की बात हुई तो इट्स वेरी फास्ट। सिमिलरली अगर हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं तो ट्रेडमार्क फाइलिंग भी टेक्स अराउंड लाइक हाफ एन आवर, और वो एवरी 10 years आप रिन्यू करा सकते हो। प्रोसीजरल टाइम इज लाइक 6 to 7 months में वो ग्रांट हो जाता है, और हर 10 साल में उसको रिन्यू कर सकते हैं। इट्स फॉर लाइफ टाइम, आपको जब तक रिन्यू करना है आप करा सकते हैं। पेटेंट, अगर डिजाइन पेटेंट की बात करते हैं तो उसकी ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग टेक्स अराउंड 7 to 10 days वो नंबर आने में। उसके बाद उसका जो प्रोसीजरल टाइम है इट टेक्स अराउंड 2 to 4 months डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। उसके बाद वो ग्रांट हो जाता है एंड उसकी लाइफ टाइम 10 years तक रहती है, और 10 years के बाद आप 5 more years के लिए वो रिन्यू करा सकते हो, ठीक है? और यूटिलिटी पेटेंट इज बिट
slower than all these, वो सबसे ज्यादा टाइम लेता है। उसका एप्लीकेशन टाइम इज लाइक 15 days लगता है उसको ड्राफ्टिंग, फाइलिंग एंड सबमिशंस के लिए, क्योंकि इट्स अ लेंथी डॉक्यूमेंट दैट गेट्स ड्राफ्टेड। उसके बाद गवर्नमेंट उसे विद इन 18 months में पब्लिश करती है। पब्लिश के बाद वो एग्जामिन करती है नेक्स्ट 6 months। एग्जामिनेशन के बाद जो भी प्रोसीजर चलता है टेक्स अराउंड 2 years, 2 to 3 years ऑलमोस्ट टू गेट इट ग्रांटेड। एंड उसके बाद फिर उसे एवरी ईयर रिन्यू करना पड़ता है। टिल 20 years यू कैन रिन्यू इट, एंड आफ्टर 20 years इट इज पब्लिक। अगर आपने रिन्यू नहीं किया तो भी डेटा पब्लिक हो जाएगा। इट इज पब्लिक फॉर एवरीवन टू यूज, कोई भी उसे रिक्रिएट कर सकता है। सो दैट इज हाउ द टाइम टेनर विल वर्क। Okay, so you have answered one of the questions also. Somebody has asked कि 20 years जब लाइफ साइकिल खत्म हो जाता है, लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है पेटेंट का, कैन आई गो फॉर पेटेंट अगेन? समबडी एल्स विल पेटेंट इट, सो दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वो तो पब्लिक हो जाता है, राइट? दैट इज पब्लिक यूटिलिटी। देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड अर्लियर आल्सो कि डू यू हैव एनी फिगर हाउ मेनी पीपल हैव बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर आईपीआर वायलेशन? सरसी कोई एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, एग्जैक्ट फिगर तो होगा नहीं। somebody has asked those, that is why I was asking you. Just we will move on to the next फिगर नहीं, बट जितने आर्टिस्ट होंगे ना, हर बार एक बार तो लाइफ में उन लोग को सबको आया ही होगा नोटिस। एवरीवन गेट्स वन इफ यू आर इन द फील्ड, इट डिपेंड्स इन व्हिच फील्ड यू आर। और अगर आप इंडस्ट्री देखोगे तो इट्स अ वेरी कॉमन फाइट। हर इंडस्ट्री, जैसे एप्पल का सैमसंग के साथ वॉर चलता रहता है, एप्पल का एमआई के साथ वॉर चलता है। इट गोज ऑन इन एवरी इंडस्ट्री, सो इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंट थिंग दैट हैपेंस बिकॉज इट्स वेरी इजी व्हेन यू आर इन द सेम सेक्टर टू हैव सिमिलर आइडियाज and to develop similar things. So it goes on. If you're in the same sector, you can find a lot of litigations. It's very fun. इसी के related एक question student का उसमें था, like you have used the PPT, you have used figures, which normally students, we all make PPTs, we use figures. So somebody was asking, have you taken the copyright of those figures? How did you use the figures? Okay. Because this is a common doubt. When PPTs are made, we normally take it from the Google image. So that is it right to use those pictures? Okay. अब यहाँ पे हमको एक चीज समझनी है कि आईपीआर तब पिक्चर में आता है जब आप बात कर रहे हो मॉनिटरिंग गेन की। एज पर आईपीआर लॉ, अगर आप किसी को सिखाने में या किसी को एजुकेट करने के लिए आप कोई भी इमेज लेते हो, कोई भी फिगर कहीं से भी आप लेते हो, तो उस पे आईपीआर के लॉ एप्लीकेबल नहीं है। पर अगर आप वही प्रेजेंटेशन, वही फिगर आप कोई वीडियो में डालते हो और वो वीडियो को अगर आपको मोनेटाइज करना है, तो पॉसिबल है कि वहां पे उस टाइम पे वो क्रिएटर आप पे क्लेम कर सकता है। पर जब तक आप किसी को एजुकेट करने के लिए कोई भी चीज पीपीटी में यूज कर रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर। Okay. One student has asked, can I IPR project? Basically he is asking final year project जो student बनाता है, can I go for IPR protection of that final year project? सर आपको जाना ही चाहिए। मैं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को भी बोलना चाहूंगा कि आपको, और हर एक जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमको सुन रहे हैं, आप सर आपको है ना एक चीज समझनी है। आप सोचो, आप आपके लाइफ के 6 महीने या 1 साल एक प्रोजेक्ट को देने वाले हो, और वो भी इस एज के। आप समझ सकते हो इस एज में आप क्या क्या कर सकते हो। वो एज के आप 6 महीने या 1 साल अगर आप कोई प्रोजेक्ट को देने वाले हो, तो उसका आउटपुट आपको बड़ा सोचना चाहिए। आपको शुरू से उसको आईपीआर के डायरेक्शन में ही लेके जाना चाहिए। कैसे लेके जाना है हम गाइड करेंगे, आप सिर्फ हमारा एक बार कांटेक्ट करो, हम आपको गाइड करेंगे कि आपके नॉर्मल से प्रोजेक्ट को भी आप कैसे आईपीआर के लेवल तक लेके जा सकते हो। तो डेफिनेटली हर एक लास्ट ईयर के स्टूडेंट जो भी कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, उनको आईपीआर के डायरेक्शन में सोचना ही चाहिए सर। या ओके, there's a question from Dr. Nagavendra. He says that experiments which are done in a constrained environment, are they inspected by IPR officers? Basically, if suppose after the result of the experiment, तो IPR officers inspect करते हैं क्या? पूजा। Okay. सर हमने स्टार्टिंग में भी कहा
रजिस्ट्री कभी भी वैलिडेट करने नहीं आती कि आपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया है या क्या प्रोडक्ट डेवलप किया है। यस, देयर इज अ सैंपल कलेक्शन। वो कब? जब आप बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में इन्वॉल्व है, मतलब आपने कोई ऐसा चीज कहा है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, सेल म्यूटेशंस इन्वॉल्व है, डीएनए आरएनए इन्वॉल्व है, तो वो आपसे वो सैंपल मांगती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ है, और वो सीक्रेसी में ही होता है। देयर इज जस्ट वन इंस्टीट्यूट जहाँ पे ये छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी है, वहां पे ये मेंटेन होता है। बाकी कोई भी आप प्रोजेक्ट करें, कितना भी कॉन्फिडेंशियल क्यों ना हो, दे वोंट आस्क यू फॉर सैंपल्स एंड प्रोजेक्ट। उसका बेस्ट एग्जांपल है हमारी डीआरडीओ, राइट? हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, जो भी डिफेंस के अंडर जो भी प्रोजेक्ट्स बनते हैं या जो भी गन्स मिसाइल्स हैं, they all are secured under Indian patent rule, और उनमें से एक भी डेटा पब्लिश नहीं होता। अगर सपोज आपने भी कोई प्रोजेक्ट किया, आप रिस्ट्रेंट एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, इफ यू हैव वर्कड ऑन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू इंडियन डिफेंस और एनीथिंग रिलेटेड टू डिफेंस एंड सिक्योरिटी, वो डेटा भी रजिस्ट्री पब्लिश नहीं करती ऑनलाइन। इट इज फॉर द ह्यूमन बेनिफिट, ताकि लोग उसे देख के रिक्रिएट ना कर सके। सो गवर्नमेंट इज दैट केयरफुल। सो अगर आपने कुछ भी रिस्ट्रेन में किया है तो आपका डेटा पब्लिश भी नहीं करेंगी, और वो आपसे पूछती भी नहीं है, क्योंकि पेटेंट वैलिडेट होता है आपने जो डेटा राइट करके दिया है उसके बेसिस पे। सो गवर्नमेंट विल नेवर एंटर सच एरिया एंड चेक। कभी एग्जामिनेशन के लिए वो लोग नहीं आते। इट्स अ मिथ, इट्स अ मिथ। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वन, एक फनी क्वेश्चन है, कैन धोनी गो फॉर आईपीआर फॉर हिज हेलीकॉप्टर शॉट? ओके, सी अगेन, जब आप हेलीकॉप्टर शॉट या स्कूप शॉट या जो भी जितने भी क्रिकेटर्स वो पर्टिकुलर शॉट के साथ अपनी आइडेंटिटी लिंक कर सकता है, पर अगेन वो एक पार्ट ऑफ स्किल है। आप समझ लो सर, अगर मैं क्रिकेट में जाता हूँ और मैं अपना हेलीकॉप्टर शॉट मैं भी खेल सकता हूँ, तो धोनी मुझे आके रोकेगा नहीं। पर हाँ, अब क्या कर सकता है पता है? धोनी क्या करेगा कि हेलीकॉप्टर शॉट और नीचे अपनी इमेज लेके धोनी ट्रेडमार्क के लिए फाइल करेगा गवर्नमेंट में। आप समझना, अब यहाँ पे तो ट्रेडमार्क में मल्टीपल क्लासेस होते हैं, तो पॉसिबल है कि वो हेलीकॉप्टर शॉट धोनी के साथ लिंक करके कोई प्रोडक्ट लॉन्च ना कर पाए, राइट? वो सिर्फ धोनी उसके लिए अपने राइट्स ले सकता है, पर हाँ, धोनी किसी को खेलने से रोक नहीं सकता, क्योंकि वो स्किल का पार्ट है, मतलब वो कोई भी डेवलप कर सकता है वहां पे, तो किसी को रोक नहीं सकता। पर हाँ, धोनी उसको प्रोटेक्ट, जैसे कि मैं आपको सिंपल बताऊं ना सर, विराट कोहली ऐसे ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, नाम उसका ट्रेडमार्क नहीं हो सकता था, पर उसने क्या किया पता है? अपनी कार्टून इमेज बना दी, मतलब एक कार्टून जैसी एक इमेज बना दी और सभी क्लास में उसने अप्लाई कर दिया। तो वैसे ही महेंद्र सिंह धोनी भी ऐसे कर सकता है कि एक हेलीकॉप्टर शॉट के साथ अपना कार्टून बनाए और उसको फिर ट्रेडमार्क के थ्रू फाइल करके प्रोटेक्ट कर सकता है, पर वो किसी को खेलने से नहीं रोक सकता, ऐसा। Okay. Next one, there's a question, what is Australian patent? पूजा। Yes sir. सर, जिस तरीके से इंडियन पेटेंट होता है उसी तरीके से होता है ऑस्ट्रेलियन पेटेंट। जैसे यूएस पेटेंट, आप जिस कंट्री में फाइल कर रहे हैं उस वहां के पेटेंट को उस कंट्री का पेटेंट बोला जाता है। द ओनली थिंग, ये ऑस्ट्रेलियन पेटेंट अभी के लिए पॉपुलर इसलिए हुआ है क्योंकि दे हैव एन इनोवेशन पेटेंट। उनमें दो टाइप की पेटेंट फाइलिंग होती है, एक होता है इनोवेशन पेटेंट, दूसरा होता है स्टैंडर्ड पेटेंट। स्टैंडर्ड पेटेंट जैसे इंडिया का पेटेंट टाइम लेता है वैसे वो लेगा, बट फॉर द स्टार्टअप्स इन ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, दे ग्रांट अ पेटेंट इन 1 मंथ। इसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन पेटेंट्स इतने फेमस हुए। सो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एन ऑस्ट्रेलियन पेटेंट, यू कैन फाइल इट, गेट अ ग्रांट सर्टिफिकेट इन 1 मंथ। So इसके लिए it has got patent, but Australian patent means a patent which has been filed in Australia is called Australian patent. That is it. Okay. Next one, Indian movies are a copy of Western films. Somebody has created the story. Are Western films not IPR protected? मैं आपको मूवी नहीं सर, मैं आपको है ना एक सॉन्ग का बताता हूँ। अगर आप एक सॉन्ग सुन रहे हो ना यूट्यूब पे, अगर एक आप सॉन्ग अगर आप देख रहे हो, तो आप उसमें 4 अलग अलग कॉपीराइट देख रहे हो। जैसे कि
सबसे पहले उसके लिरिक्स कॉपीराइट होंगे, उसके बाद उसका कंपोजिशन कॉपीराइट होगा, फिर दोनों को मिला के उसका MP3 अलग से कॉपीराइट होगा, और वो अगर कोई वीडियो के साथ लिंक है, अगर उस पे वीडियोग्राफी की है तो उसका अलग से कॉपीराइट होगा। तो आप सोचो एक मूवी में आप 1000, 2000, 3000 से ज्यादा IPR कॉपीराइट या पेटेंट होती होंगी, राइट? तो डेफिनेटली देखो जो कॉपी हो रही है, जैसे कि देखो आइदर उसके लिए हमारी जो फिल्म मेकर्स है उन्होंने उसके लिए राइट्स, मतलब रीमेक के राइट्स लिए होंगे, तब जाके वो ऑफिशियली रीमेक या उस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन पे मूवी बना सकते हैं, या फिर पॉसिबल है कि उन्होंने वो प्लॉट में चेंज किया होगा। देखो सर, आप जब भी IPR की बात करते हो ना, तो कुछ ना कुछ लूपहोल्स होते हैं जहां से लोग क्रिएटर्स बच जाते हैं या मूवी मेकर्स बच जाते हैं, तो वो लूपहोल का बेनिफिट ले सकता है, और एल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लाइसेंस से ही ये काम होता है। जैसे कि साउथ इंडियन, इवन आप बाहर की मूवीज छोड़ दो, साउथ इंडिया में से भी यहाँ पे रीमेक होती है, उसके लिए भी एक्सक्लूसिव राइट्स लेने पड़ते हैं, तभी जाके वो यहाँ पे वापस से मूवी वगैरह बना सकते हैं सब। True. Okay, there's a technical question. I think so. It's a good one. To patent, they say you need to patent it in every country. If you wish to protect it internationally, is it possible? Yeah. So should we go for every country? कि इंडिया में कर लिया, whether it is valid internationally also? Okay. Sir, as I explained, जब आप पेटेंट फाइल करते हैं तो वो उस रीजन के लिए होता है, दैट मींस इट्स फॉर ओनली फॉर इंडिया। बट इफ यू वांट टू फाइल इंटरनेशनली, देयर इज अ फैसिलिटी कॉल्ड PCT, दैट इज पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, जिसके अंडर बहुत सारी कंट्रीज ने साइन किया है। देयर आर 183 कंट्रीज अंडर इट। और आप जब PCT फाइल करते हैं तो हर एक कंट्री में ब्रॉडकास्ट जाता है, क्योंकि इंडिया में एक ऐसा पेटेंट फाइल हुआ है। बट अगर मुझे राइट्स क्लेम करना है उस इंडिविजुअल कंट्री में, तो मुझे उस कंट्री के गवर्नमेंट फीस तो पे ऑफ करनी पड़ेगी। आफ्टर PCT इज लाइक अ ब्रॉडकास्ट, पब्लिश होता है हर एक कंट्री में। आफ्टर दैट टू क्लेम राइट्स आई हैव टू सिलेक्ट, क्योंकि मुझे राइट्स जो है वो चाइना में चाहिए, श्रीलंका में चाहिए, US में चाहिए। आई हैव टू सिलेक्ट दोस कंट्री, पे द गवर्नमेंट फीस ऑफ दैट कंट्री, वो वहां पे वैलिडेट करेंगे, एंड उस गवर्नमेंट के पास ये राइट्स है कि वो मुझे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे। जरूरी नहीं कि इंडिया में मेरा पेटेंट ग्रांट हो गया तो मुझे US में भी ग्रांट हो जाएगा, नहीं, वो उस कंट्री का रजिस्ट्री डिसाइड कर सकता है कि मुझे ग्रांट कर सकता है कि नहीं। So it matters. Every country has their own rights, their jurisdiction and rules and regulations. Okay. Shortage of time, I will take few more questions. Yeah, दो तीन क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक व्यूअर ने कहा है कि what help can Mycrave provide us for IPRs? Basically, he wants to ask how college and Mycrave, the team, can help the students. Just if you can highlight the procedure. Yes. Dhruv sir, will you be taking it? तुम ले लो। अच्छा, ओके। सो हम कैसे वर्क करेंगे? फर्स्ट, हमारी जो टीम है, जो भी एप्लीकेंट है, जिनको भी इंटरेस्ट है, आइडियाज है उनके पास, उनके साथ एक पर्सनल काउंसलिंग सेशन होगा। राइट नाउ वी कैन नॉट फिजिकली विजिट, तो हम लोगों ने सर से रिक्वेस्ट किया है कि वील हैव एन ऑनलाइन 1-to-1 डिस्कशन विद देम। उनके आइडिया को समझेंगे, हम फिर वेरीफाई करेंगे कि वो आइडिया पेटेंटेबल है कि नहीं। अगर उसमें 1% भी स्कोप है तो हम उसे यूटिलिटी या पेटेंट या कॉपीराइट की कैटेगरीज में उसको बाइफिकेट करेंगे। अगर नहीं है तो हम उसे आइडिया को एनहांस करेंगे और उसे पेटेंटेबल में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। वी कैन एक्चुअली प्रोवाइड यू विद टिप्स। हम स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे कि उसमें से क्या चीज हम डायरेक्शन चेंज करके पेटेंटेबल कर सकते हैं। वंस इट इज मेड पेटेंटेबल, हम उसकी ड्राफ्टिंग, फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, हर एक प्रोसीजर टिल द एंड सर्टिफिकेट आने तक हम उन्हें गाइड और हेल्प करते रहेंगे। दैट इज हाउ Mycrave is going to be part of the institute. We are not Mycrave, we are actually we are a part of Roongta family only. हम as Roongta family ही आपको fully support करेंगे। आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, आप जो भी शेयर करेंगे it will be confidential from the start till the end। हम आपकी पूरे प्रोसीजर में completely मॉनिटर और हेल्प करेंगे। देखो, और जो भी सुन रहा है ना, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो, हम आपका टाइम लेने के लिए नहीं आए, आप सिर्फ हमारे साथ 10 से 15 मिनट आपको सिर्फ हमारे साथ स्पेंड करना है। बाकी का जो कुछ भी है हम देख लेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मतलब हम आपसे स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी हेल्प करेंगे आपकी, राइट? यस सर। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को
If you have any doubt after this also, you can contact your HOD, you can contact research team of the college. They will connect you to Micrave consultancy team. ध्रुव सर और पूजा मैडम से कनेक्ट कर देंगे. जो भी डाउट्स है इस वेबिनार के बाद भी आपके क्लियर हो जाएंगे. सो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस 100% हम कवर अप नहीं कर पाते, लिमिटेड टाइम है, एंड विद इन दिस लिमिटेड टाइम दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी topic cannot be covered. We all know limited 1 hour, 1.5 hours. It takes lot of webinars to cover each and every topic. तो बहुत ही समराइज्ड वे में अपन प्रेजेंट कर रहे हैं. तो जो भी क्वेरीज बच गया है, we will cover up later on. I will take the last question because we were talking about technology. So there's a question from a student of commerce stream. What are the benefits of commerce stream in this? Maybe a student from BCom or BBA. ओके सर, सी जब भी हम IPR की बात करते हैं ना, आपको आपकी स्ट्रीम से क्या है वो सोचने की जरूरत नहीं है. आपको ध्यान रखना है कि आपका आइडिया क्या है. जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, राइट. मैं आप जो पढ़ रहे हो वही मैंने पढ़ा हुआ है. पर आप मुझे कोई भी फील्ड का इनोवेशन लेकर, आइडिया लेकर आओगे ना, मैं कुछ ना कुछ उसमें एनहांस कर सकता हूँ. तो आप कौन सी फील्ड से हो ना, वो फर्क नहीं पड़ता. बस वो क्रिएटिव थिंकिंग अगर आपका है तो IPR आपके लिए है. ओके, अब आप बात करते हैं कॉमर्स की, राइट. तो देखो, कॉमर्स अगर आप मैनेजमेंट में जाते हो या कहीं पे भी, मतलब आप आपका फ्यूचर आप कौन सी डायरेक्शन में आप सिलेक्ट करते हो, तो कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो और वहां पे IPR का कल्चर एस्टेब्लिश करते हो, तो वो एक इंस्टीट्यूट या वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यू एडिशन होगा, राइट. तो डेफिनेटली उस डायरेक्शन से अगर आपको IPR का नॉलेज है तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू एडिशन कर सकते हो. या फिर IPR तो आप मतलब आप आगे पढ़ते हुए जाओगे तो आपका सब्जेक्ट, मतलब आपका कोर सब्जेक्ट भी आता है शायद IPR कॉमर्स के स्टूडेंट को, तो वहां पे भी वो बेनिफिशियल हो सकता है. कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज अगर कोई डेवलप करता है कॉमर्स स्टूडेंट, तो कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी उसने डेवलप किया, सपोज ही रिसर्चर्स एंड कम्स आउट विद अ कॉन्सेप्ट, तो वो IPR के लिए जा सकता है क्या? सर एक्चुअली वो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि IPR एज अ कॉमर्स स्टूडेंट मुझे कैसे बेनिफिट करेगा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इट्स कंप्लीटली रिलेटेड टू साइंस बैकग्राउंड. आपको ये समझना जरूरी है, IPR कोई भी ब्रांच को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता. हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस अलग, कॉमर्स अलग अलग सेक्टर से हैं. हमें एक आइडिया चाहिए, एक प्रॉब्लम चाहिए आपके सेक्टर में जिसे हम रिजॉल्व कर सके. लाइक फॉर एग्जांपल, अभी जस्ट एक एग्जांपल ले रही हूँ. एक बच्चा, एक बहुत इनोवेटिव बच्चा है, उसने ऐसा बोला, ही इज फ्रॉम द कॉमर्स सेक्टर. उनका आइडिया सुनो कि जो POS सिस्टम होता है, आप कहीं पे भी जाते हैं, अभी स्क्रैच कार्ड का सिस्टम चलता है. उसने ऐसा कहा कि व्हाई नॉट अटैच अ ट्रांसलेटर टू इट. मतलब जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, मुझे नहीं पता कि वो बंदा कौन से लैंग्वेज में बोल रहा है. इंडिया विद ब्यूटीफुल डाइवर्सिफाइड लैंग्वेजेस, तो वो POS सिस्टम में इसने ट्रांसलेटर डाला, और अगर वो उसको कन्वर्स करने में हेल्प करेगा कि मुझे कुछ चाहिए, तो मैं वो POS सिस्टम को बोलूं और वो ट्रांसलेट करके सामने वाले दुकान वाले को बोले. इट्स अ थॉट ऑफ अ कॉमर्स स्टूडेंट. उसे उस टाइम पे वो सिर्फ बिलिंग का वो चीज दिखा, एंड ही थॉट इट इज वन थिंग दैट कैन प्रमोट टूरिज्म. दैट इज हाउ यू थिंक. उसमें टेक्नोलॉजी कैसे जाएगा, दैट इज द पार्ट. वो उस पार्ट में हम आपकी हेल्प करेंगे. आपको सिर्फ आइडिया लाना है, आपको उस डायरेक्शन में सोचना है. द थिंग्स दैट यू आर यूजिंग एवरी डे, आप पेन यूज करते हो, आपको लगता है काश मेरा पेन कैलकुलेटर की तरह काम करता. दैट इज हाउ यू थिंक. आपके पास आइडिया हो, उसे कैसे एक पेटेंट में कन्वर्ट करना है या उसके रिगार्डिंग कैसे बैकग्राउंड में वर्क करना है, उसके लिए तो हमारी टीम बैठी ही है. You just have to bring out an innovative idea, a field that you want to, develop in. बाकी पूरा चीज हम मैनेज कर सकते हैं. So आप कौन से फील्ड से हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके पास इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए, एक प्रोडक्ट या एक प्रॉब्लम होना चाहिए. We can give you solutions in respect to IPR. Okay, thanks a lot, Dhruv sir and Pooja madam. It was wonderful learning experience. मुझे मालूम है कि आप लोग का बड़ा टफ टाइम था टू कवर अप दिस टॉपिक इन अ शॉर्ट पीरियड. बहुत सारे क्वेरीज बच गए होंगे बच्चों के. एंड टू द स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू से दैट दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज नॉट द एंड. अभी तो बहुत आगे जाना है. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स
आपको मिलेंगे, बहुत सारे एवेन्यूज मिलेंगे जिसमें आप अपने IPR रिलेटेड डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. वी विल बी कंटिन्यूसली टच विद ध्रुव सर एंड पूजा मैडम, and you can take the benefit of this tie-up and this connection which we have in our campus. And so be in touch with your department, be in touch with the research team, and do some creative, innovative work and publish it so that it will be really beneficial and you will be differentiating yourself from the crowd. और बहुत important है अपने आप को क्राउड से डिफरेंशिएट करके अपनी प्लेसमेंट, अपनी आगे की लाइफ की जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, करियर सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको ये सब चीजों में जाना पड़ेगा. एंड वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. एंड विद दिस लेट्स एंड अप दिस वेबिनार फॉर द डे. एंड thank you once again Pooja madam and Dhruv sir for this wonderful thought sharing process. Thank you all. अच्छा दिन था, अच्छा वेबिनार था ध्रुव जी और पूजा मैडम. थैंक यू. तो मेरे ख्याल से आई शुड एंड दिस वेबिनार. फिर अपन 2 मिनट बात कर सकते हैं. जी.